Good morning, all the participants. Is I audible? Yes, you are audible. Please go ahead. Yeah. Good morning, all the participants. Today's speaker is Dr. Mahesh H. Kotalmar, sir. He is working as an assistant professor at PVD College of Education for Women, and he is working for SNDT Women's University, Mumbai for the last 15 years. He has been working in a teacher education, that is B.Ed. He is a recognized PhD guide in the subject of education under the Faculty of Interdisciplinary Studies, SNDT Women's University, Mumbai. He has done his MA in Marathi literature and political science, and he has done MEd education. He has qualified UGC NET education and SET, SAT education and PhD in education from Swami Ramanand Teeth, Marathwada University, Nanded. He started his career as a teacher, educator in 2007 and at the institution, and joined PVD College of Education and SNDTU College in July 2011. Dr. Mahesh has also completed 3 major projects funded by SSA, UTI, and State Women's Commission, Maharashtra. Along with his research project, he has published 15 research papers, articles so far in various national and international journals. He has also contributed 4 chapters in edited books, 3 chapters, Unit 2, ODL study material for YMMOU. And Dr. Mahesh has worked as a keynote speaker, resource person in various national, state level seminar, webinars, and faculty development program. Also, he has participated in more than 20 international, national seminar workshops in India as well as abroad. He has developed and deployed MOOCs as a ORE development of 21st century skill through education, learning and innovation skill, and development of 21st century skill through education 2, information, media, and ICT literature skill under the UNESO, an online monitoring program for the 2029 and 2020, along with the OBE 4 BW project. He has also developed a 4-credit 90 hours MOOCs as an ORE on a school leadership capability building with the support of his workers as a mentor of OE4BW ORE program project. He has been invited by the UNESO chair on open technologies for ORE and open education servant Europe to share his ORE development project result in UNESO. Mr. Mahesh has also awarded a state level Shri Dr. Ma Ga Che Award for the contribution achievement in the field of education by SEB Society in 2015 at Bidar, Karnataka. He also received Best Research Paper Presentation Award in National Conference on Pedagogy Shift in India Teachers Education Program organized by PVD College of Education for Women, Mumbai, in collaboration with MSS TEA on 27th and 28th January 2017. This is a brief description of today's speaker, Dr. Mahesh sir. Now I request Dr. Mahesh sir to take up the session. Thank you. Thank you very much for this long introduction. Thank you, sir. Okay, just a minute. Dear participants, before we start, I have one question for warm-up activity. Please share what are the basic steps or a basic procedure we followed in research. You can use chat box for the answer. What are the basic steps we followed in our research?
Am I clear? Please someone unmute and reply me. Yes, sir, you are audible. The collection of data is one of the important subject for the research methodology, collection of data. Okay, before the data collection, there are some steps which are necessary. I think here are some steps. Do the primary research information, locate material, evaluate your sources, make note, write your paper. Okay. Tool and techniques. Methodology. Okay. जैसा आप लोगों ने बताया है कि इसमें से कुछ एक रिगरस जो प्रोसेस है, एक बेसिक या बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो है, जिसके बिना रिसर्च कंप्लीट नहीं हो सकता, या फिर हम ऐसे भी कैसे वी कांट कंक्लूड और वी कांट find anything through the research without the data collection. So today we are going to discuss the data collection and various ways and tools of data collection. This is today's content layout. Concept of data collection, we will discuss type of data, qualitative data, quantitative data, and mixed approach of the data. Later on, we'll discuss data collection, primary and secondary, through the primary sources and secondary sources. Data collection methods, tools, and techniques like survey, under the survey, questionnaire, poll, forms. Interview, there are three types of interviews, or three forms of interview: structured, semi-structured, and unstructured interview. Observation is also another important data collection way. Under this, we will discuss uncontrolled observation and controlled observation. And last, focus group discussion. In this 2-hour session, we will cover only 4 important data collection methods and tools. Yeah, concept of data collection. What is data collection? Data collection is the process of gathering and measuring information on variables of interest in an established systematic fashion that enable one to answer stated research question, test hypothesis, and evaluate outcome. For this reason, data collection is very essential part. जसं आपण म्हणतो की रिसर्च मध्ये आपली काही उद्दिष्ट आहे, देयर इज अ एम अँड सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. तर त्या ऑब्जेक्टिव्सना आणि त्या ध्येयांना साध्य करण्यासाठी जे काही आपलं म्हणजे ज्या हायपोथेसिस आपण संशोधनामध्ये मांडतो किंवा संशोधन प्रश्न ज्याला आपण म्हणतो ते मांडतो, त्यांची उत्तरं मिळवण्यासाठी किंवा हायपोथेसिस टेस्ट करण्यासाठी जी माहिती आपण संकलित करतो, whatever data we collected, that is the process of data collection. तर त्या दृष्टिकोनातून डेटा कलेक्शन या गोष्टीला अतिशय महत्व आहे. म्हणजे संशोधनात जर डेटाच नसेल तर संशोधन होऊ शकत नाही. म्हणजे आपल्याकडे हायपोथेसिस आहेत, रिसर्च डिझाइन, there is a good research design, we have a research questions, problems, hypothesis, but for all that we should have a rigorous or a empirical data to come to the conclusions. So for that purpose, data collection is a very important and
we can say essential process in research. Next type of the data. So there is a question. तो डेटा क्या होता है, उसके क्या टाइप्स है. डेटा ज्याला आपण मराठीमध्ये माहिती असं म्हणतो, इन्फॉर्मेशन. वी कॅन से द इन्फॉर्मेशन in a simple word, data. So there is a two type of data. One is a qualitative data. Another type of data is a quantitative data. There is some information is related to the attitude, interest, values, which is we can't form in a, or we can't organize in a numeric manners or in a numbers. That type of data we can consider it is a qualitative data. गुणात्मक माहिती असं आपण त्यांना म्हणतो, जी माहिती संख्येमध्ये सांगणं शक्य असलं तरी ते सांगणं उपयुक्त नसतं किंवा ते सांगणं बरोबर होत नाही. अशी जी वर्णनात्मक माहिती आपण विचारात घेतो, वर्णनात्मक माहितीला आपण कन्सिडर करतो, त्याला आपण क्वालिटेटिव्ह स्वरूपाची माहिती असं म्हणत असतो. म्हणजे तिथं 1 आणि 2 अशा नंबर्स मध्ये मोजून किंवा दिस इज द लेस अँड दिस इज द हायर अशा पद्धतीनं म्हणता येत नाही. म्हणजे एकाने जरी म्हटलेलं असेल आणि ती माहिती जर रिगरस असेल, रिलेव्हंट असेल, तर ती ते आपण म्हणजे इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ नंबर्स, fluency or a percentage, we can consider it. That type of data we can say the qualitative data. Another type of data is a quantitative data. This is the numerical data obviously. ज्या डेटाला आपण नंबर्स मध्ये कन्वर्ट करू शकतो, ज्या डेटाला आपण कंपॅरिझन करू शकतो थ्रू द नंबर्स, ग्राफ्स, फिगर्स, त्याच्या माध्यमातून पर्सेंटेज आपण ज्याच्या काढू शकतो, अशा डेटाला आपण क्वांटिटेटिव्ह डेटा असं म्हणत असतो. क्वांटिटेटिव्ह डेटाचा उपयोग जास्त संशोधनामध्ये जनरलायझेशन साठी जास्त उपयोग होतो. तर क्वालिटेटिव्ह डेटाचा उपयोग जो आहे तो काय म्हणतो आपण त्याला गुणात्मक कन्क्लुजन्स काढण्यासाठी, म्हणजे सब्जेक्टिव्ह म्हणजे व्यक्तीच्या समस्येवर उपाय सुचवण्यासाठी, व्यक्तिगत समस्या सोडविण्यासाठी वगैरे क्वालिटेटिव्ह डेटाचा उपयोग होतो. या दोन्ही डेटाची काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. दे हॅव अ ओन मेरिट्स अँड त्यांचे स्वतःची काही डेमेरिट्स सुद्धा आहेत. जसं ह्युमन सायन्सेस मध्ये, फॉर एक्झाम्पल ह्युमॅनिटीज मध्ये बऱ्याच गोष्टी या क्वांटिफाईड करता येत नाहीत. मग त्या केसमध्ये आपल्याला जी माहिती हवी असते माणसांकडून ती क्वालिटेटिव्ह स्वरूपाची असते. म्हणजे बऱ्याच गोष्टी क्वांटिफाईड सांगताच येत नाहीत. फॉर एक्झाम्पल ऍप्टिट्यूड टेस्ट असेल किंवा ऍटिट्यूड मोजायचं आहे किंवा इफिकसी मोजायची एखाद्या व्यक्तीची, तर ती आपल्याला असं क्वांटिफिकेशन मध्ये सांगता येत नाही, मोजता येत नाही. तर त्या केसमध्ये आपण क्वालिटेटिव्ह डेटा तिथं उपयोगाचा असतो. पण जेव्हा आपण संशोधन असं म्हणतो तेव्हा देर इज अ रिक्वायरमेंट लाईक अ जनरलायझेशन, आणि जनरलायझेशन करण्यासाठी काही न्यूमरिकल डेटा किंवा फॅक्ट जे काही असतील ते म्हणजे मेजरेबल, स्केलेबल अशा पद्धतीचा डेटाही आपल्याला गरजेचा असतो. आणि दोन्ही स्वरूपाच्या माहितीच्या आधारावर ह्युमॅनिटीज मध्ये आपण जास्त कॉन्क्रीट अशा कन्क्लुजन्स पर्यंत येऊ शकतो. दॅट इज द मोर युजेबल, वी कॅन से द usable, applicable conclusions we can find out through the both method, like a qualitative and quantitative. For this purpose, दोन्ही मेथडचे डेमेरिट्स कमी करून, म्हणजे या मेथड मधलंही चांगलं घ्यायचं, त्या मेथडचाही चांगला भाग जो आहे तो घेऊन जी एक नवीन पद्धती विकसित झाली ती म्हणजे मिक्स्ड डेटा, म्हणजे मिक्स टाइप ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह डेटा. एकच संशोधनामध्ये आपण गुणात्मक माहितीही वापरतो, म्हणजे इनडेप्थ इंटरव्ह्यू पण वापरलेला आहे, आणि त्याच संशोधनामध्ये काही क्लोज क्वेश्चनियर, क्लोज आन्सर टाइप क्वेश्चनियर पण वापरलेली आहे, जिला की स्टॅटिस्टिकली या न्यूमरिकल फॉर्म मध्ये आपण तिला कन्वर्ट करू शकतोय. आणि जी क्लोज इंटरव्ह्यू आहे त्याच्यावरून आपण म्हणजे काय म्हणतो त्याला व्हॅलिडिटेशन ऑफ न्यूमरिक इन्फॉर्मेशन वी कॅन व्हॅलिड, म्हणजे आपण त्याला अधिक रिलायबल किंवा विश्वसनीय बनवण्यासाठी क्वालिटेटिव्ह जो इन्फॉर्मेशन किंवा इनडेप्थ इंटरव्ह्यू आपण घेतलेला आहे तो त्याला सपोर्टच्या स्वरूपामध्ये वापरू शकतो.
आणि त्याच्यामुळं काय होतं तर जास्त स्पेसिफिक ऍप्लिकेबल अशा पद्धतीचे कन्क्लुजन्स जे की अधिक रिलायबल आणि व्हॅलिड असतील आपल्याला काढता येतात. आणि ओव्हरऑल रिसर्चची जी क्वालिटी ऑफ द रिसर्च आपण जो म्हणतो तो त्याच्यामुळे इम्प्रूव्ह होऊ शकतो. आणि या पर्स्पेक्टिव्हला कन्सिडर करून लोकांनी क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्हचं मिक्स असं व्हर्जन वापरायला सुरुवात केलेली आहे. आणि म्हणून या दोन्ही पद्धतीचा डेटा ज्या संशोधनांमध्ये वापरलेला असतो अशा संशोधनांना मिक्स मेथड रिसर्च असं सुद्धा म्हटलं जातं. म्हणजे असं काही नाही की आपलं उद्दिष्ट जर संशोधनाचं अधिक स्पेसिफिक वैज्ञानिक पद्धतीनं रिलायबल आणि व्हॅलिड अशा पद्धतीनं जर साध्य होत असेल तर दोन्ही वापरायलाही हरकत नाही. आणि त्यातूनच मिक्स मेथडचा अप्रोच पुढे आला. आता आपण बघूया क्वालिटेटिव्ह डेटाची काही कॅरेक्टरिस्टिक आहेत, काय नेचर आहे. क्वालिटेटिव्ह डेटा आर मोस्टली नॉन न्यूमरिकल अँड युजली डिस्क्रिप्टिव्ह ऑर नॉमिनल इन नेचर. म्हणजे तो साधारणपणे वर्णनात्मक स्वरूपाचा असतो, नॉमिनल त्याचं स्वरूप आहे आणि नॉन न्यूमरिकल असतो, म्हणजे संख्यात्मक स्वरूपाचा तो असत नाही. म्हणजे 15 म्हणजे जर आपण एखाद्या जमीन मोजायला घेतली तर तिथं आपण सांगू शकतो 10 फूट 20 फूट 50 फूट अशा पद्धतीनं. किंवा एखाद्या प्रयोगाचं जर निरीक्षण करत असू तर इतक्या डिग्री ते इन्क्रीज झालं, इतक्या डिग्री ते डिक्रीज झालं, अशा पद्धतीनं आपण त्याला न्यूमरिक फॉर्म मध्ये मांडू शकतो. पण क्वालिटेटिव्ह डेटामध्ये त्याचं बेसिक नेचर आहे, इट इज अ नॉन न्यूमरिकल. तर तुम्हाला पेटला विचारलेलं असताना सुद्धा या गोष्टी किंवा ही माहिती महत्वाची आहे. क्वालिटेटिव्ह डेटाचं कॅरेक्टरिस्टिक काय, इट इज मोस्टली नॉन न्यूमरिकल अँड युजली डिस्क्रिप्टिव्ह. त्याच्यानंतर दिस मीन द डेटा कलेक्टेड आर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड अँड सेंटेन्सेस. म्हणजे ही जी माहिती असते ही नंबर्स मध्ये नसते, तर ती शब्दांमध्ये किंवा वाक्यांमध्ये ती कलेक्ट केलेली असते. पण दुसरीकडं जर क्वांटिटेटिव्ह डेटा असेल तर इट मे बी अ न्यूमरिकल फॉर्म. ऑफन नॉट ऑलवेज, म्हणजे बऱ्याचदा तसं असतं पण कायम असलंच पाहिजे असं नाही. सच डेटा कॅप्चर्स फिलिंग्स, इमोशन्स ऑर सब्जेक्टिव्ह परसेप्शन्स ऑफ समथिंग. एखाद्या बाबीविषयीचे सब्जेक्टिव्ह परसेप्शन म्हणजे व्यक्तीचं जे व्यक्तिगत परसेप्शन आहे ते पाहण्यासाठी, त्यांच्या फिलिंग्स इमोशन्स बघण्यासाठी, अशा गोष्टींसाठी या पद्धतीचा किंवा या पद्धतीची माहिती उपयोगाला पडते. क्वालिटेटिव्ह क्वेश्चन्स आर ओपन एंडेड. क्वालिटेटिव्ह जे प्रश्न असतात ते ओपन एंडेड असतात. ओपन एंडेड म्हणजे तिथं जो एकक आहे, जो रिस्पॉन्डंट आहे, त्या रिस्पॉन्डंटला त्याच्या पद्धतीनं त्याला उत्तर द्यायला त्याच्यामध्ये वाव असते. त्याला काही स्पेसिफिक दिशा त्याच्यामध्ये दाखवलेली नसते. जणू काही आपण ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन मध्ये देर आर 4 आन्सर्स, यू हॅव टू सिलेक्ट अमंग दॅम. त्याच्यापैकी एकच तुम्हाला सिलेक्ट करायचं. इट मीन्स इट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन. तर ओपन एंडेड क्वेश्चन मध्ये अशा पद्धतीचं काही बंधन नसतं की त्याला त्याचं युनिक आन्सर सुद्धा तो तिथं देऊ शकतो. क्वालिटेटिव्ह मेथड्स इन्क्लूड फोकस ग्रुप्स, ग्रुप डिस्कशन अँड इंटरव्ह्यूज. याच्यामध्ये बेसिकली ज्या क्वालिटेटिव्ह डेटा कलेक्शन साठीच्या ज्या मेथड्स असतात, म्हणजे गुणात्मक माहिती संकलित करण्यासाठी फोकस ग्रुप, इंटरव्ह्यू असू शकतो, ग्रुप डिस्कशन करता येईल आणि इंटरव्ह्यू आपल्याला म्हणजे ओपन एंडेड क्वेश्चनियर सुद्धा देऊन आपल्याला क्वेश्चनियर आणि इंटरव्ह्यू याचा वापर करता येईल. Qualitative data collection methods play an important role in impact evaluation by providing information useful to understand the process behind observed results and assess changes in people's perception of their well-being. म्हणजे अशा पद्धतीच्या गोष्टींचं निरीक्षण करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला काय करता येतं, क्वालिटेटिव्ह डेटा कलेक्शन मेथडचा उपयोग होतो आणि त्यासाठी ही जी मेथड आहे ती उपयोगाची ठरते. Furthermore, qualitative methods can be used to improve the quality of survey-based quantitative evaluation. तर याचा उपयोग काय, मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे जे आपण सर्वे बेस्ड क्वांटिटेटिव्ह इव्हॅल्युएशन करतो, म्हणजे न्यूमरिकल इव्हॅल्युएशन करतो, 5 आहेत 10 आहेत वगैरे, पण ते कसे आहेत याच्याविषयीचं उत्तर मिळत नाही. तर त्या केसमध्ये त्याची जी आपण म्हणतो ना यूज ऑफ इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ सर्वे, सर्वेची जी क्वालिटी आहे, क्वालिटी या अर्थाने की त्याच्यामधून जी आपल्याला माहिती मिळणार आहे तिची रिलायबिलिटी, तिची विश्वसनीयता किंवा तिची व्यापकता, डेप्थ, या अर्थाने क्वालिटी ऑफ
सर्वेची क्वालिटी आपण विचारात घेतो. आणि त्यासाठी सुद्धा क्वालिटेटिव्ह टाईपचे क्वेश्चन जर आपण सर्वेमध्ये घेतले तर त्याचा उपयोग होतो. इव्हॅल्युएशन हायपोथेसिस टेस्टिंग साठी किंवा स्ट्रेंथनिंग द डिझाईन ऑफ सर्वे क्वेश्चनेअर्स अँड expanding or clarifying the quantitative evaluation findings. तर क्वांटिटेटिव्ह ज्या गोष्टी आहेत त्याला सपोर्ट करण्यासाठी, त्याला एक्सपांड करण्यासाठी, त्याला मीनिंग प्राप्त करून देण्यासाठी क्वालिटेटिव्ह डेटाचा उपयोग आपल्याला होतो. फीचर ऑफ द क्वालिटेटिव्ह डेटा टेंड टू बी ओपन एंडेड अँड हॅव अ लेस स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल. जसं मी म्हणालो मगाशी आपण बोललो की इट इज अ ओपन एंडेड टाईप आणि तिथं खूप स्ट्रक्चर्ड असे प्रोटोकॉल नसतात. का तर तिथं सब्जेक्टिव्ह आन्सर आहे, व्यक्तिगत रिस्पॉन्सेसच्या स्वरूपामध्ये ती माहिती अपेक्षित असते. त्याच्यामुळं तिथं तो स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल नसतो की तुम्ही हीच उत्तरं दिली पाहिजेत किंवा अशाच पद्धतीनं त्याला रिस्पॉन्ड केलं पाहिजे किंवा हीच मला हवी तीच स्पेसिफिक माहिती तुम्ही दिली पाहिजे, असं इतकं तिथं स्ट्रक्चर्डनेस नसतो. रिले मोर हेवीली ऑन इंटरॅक्टिव्ह इंटरव्ह्यूज, म्हणजे याच्यामध्ये भर दिलेला असतो तो इंटरॅक्टिव्ह इंटरव्ह्यूजवर. रिस्पॉन्डंट्स मे बी interviewed several times to follow up on the particular issue, clarify concept or check the reliability of the data. Qualitative data collect करत असताना एकाच माणसाचे पुन्हा पुन्हा इंटरव्ह्यू सुद्धा घेतले जाऊ शकतात. कारण एकदा इंटरव्ह्यू घेतला, काही डेटा आपल्याला कलेक्ट झाला, पण काही डाऊट आहे, त्यांनी सांगितलेला प्रश्न आपल्याला तर्कावर बसत नाहीये, त्याचं क्लॅरिफिकेशन हवं. इन दॅट केस वी कॅन गो अगेन अँड पुन्हा एकदा आपण त्याचा इंटरव्ह्यू घेऊ शकतो. आणि ही क्वालिटेटिव्ह डेटामध्ये एक नॉर्मल अशी प्रोसिजर आहे. कारण बऱ्याचदा कॉन्सेप्ट क्लिअर होत नाही, काय म्हणायचं होतं ते आता लक्षात येत नाही, मग पुन्हा त्याचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा, पुन्हा त्याचे आर्ग्युमेंट्स त्याच्या संदर्भातले बघायचे. तर अशा पद्धतीनं हे काम करता येतं. चेक द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. डेटाची रिलायबिलिटी चेक करण्यासाठी आपण पुन्हा पुन्हा, म्हणजे एका प्रश्नाला व्यक्ती काय म्हणतो, सकारात्मक टाईपचं उत्तर देतो आणि पुढे 6व्या 7व्या प्रश्नाला जेव्हा तो पुन्हा नेमकं त्याच्या उलट सांगत असेल, इन दॅट केस तो रिलायबल सांगत नाही. वर म्हणतो हो, खाली म्हणतोय नाही, किंवा वर हो म्हणण्यासारखं काहीतरी सांगतोय आणि खाली नाही, म्हणजे तो ऍग्री होत नाही असं काहीतरी सांगतोय. इन दॅट केस देर इज अ इश्यू ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. तर तो इश्यू रिझॉल्व्ह करण्यासाठी पुन्हा पुन्हा तो करता येऊ शकतो. यूज ट्रँग्युलेशन टू इन्क्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ देअर फाइंडिंग्स. For example, researchers rely on multiple data collection methods to check the authenticity of their result. तर केवळ एका क्वांटिटेटिव्ह डेटा कलेक्शन मेथडवर अवलंबून राहिल्यामुळं असं आपल्याला ठामपणे त्याची ऑथेंटिसिटी जे आहे, म्हणजे खरोखरच ते जे म्हणते ते खरं आहे का, हे याचा खरेपणा अधिक दृढ करण्यासाठी किंवा ऑथेंटिसिटी च्या बाबतीत अश्युअर होण्यासाठी सुद्धा आपण मल्टिपल वेजनी डेटा कलेक्ट करू शकतो विथ द क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह पद्धती. फाइंडिंग्स आर नॉट जनरलायझेबल टू एनी स्पेसिफिक पॉप्युलेशन. रादर each case study produces a single piece of evidence that can be used to seek general pattern among different studies of the same issue. हे बघा, आता मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे की क्वांटिटेटिव्ह डेटाच्या आधारावर आपण काय करू शकतो, जनरलायझेशन करू शकतो. निष्कर्ष जे आपल्याला काही कन्क्लुजन मिळतील त्याचं आपण जनरलायझेशन करू शकतो फॉर दॅट पर्टिक्युलर पॉप्युलेशन. म्हणजे आपला जो निष्कर्ष आहे तो भले आपल्या सॅम्पल वरून आपण काढलेला असला तरीही क्वांटिफाईड तिथं स्टँडर्ड अशा पद्धतीचं सगळं स्वरूप असल्यामुळं आणि क्वांटिफिकेशनच्या आधारावर अनालिसिस केलेलं असल्यामुळे देर इज अ इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिकल वेज ज्याचा उपयोग करून आपण काय करतो, त्याचा जनरलायझेशन करत असतो. किंवा इज इट जनरलायझेबल, म्हणजे तो जनरलाइज करण्या इतपत कन्क्लुजन आहे किंवा रिझल्ट आहे का ते चेक करू शकतो. पण क्वालिटेटिव्ह सिस्टीम मध्ये तसं जनरलायझेबल असं करता येत नाही. फाइंडिंग्स जे असतात ते स्पेसिफिक राहतात किंवा त्या एककापुरते, केस पुरतं, त्या पर्टिक्युलर केस पुरते मर्यादित असे ते कन्क्लुजन्स असतात. कारण डेटा इटसेल्फ आर व्हेरी सब्जेक्टिव्ह. दॅट्स वाय द फाइंडिंग्स ऑल्सो आर नॉट जनरलाइज. त्यामुळं अशा पद्धतीच्या रिसर्च मधून काय होतं, पण कॅन बी यूज टू सीक जनरल पॅटर्न अमंग डिफरंट studies of the same issue.
पण याचा फायदा काय होतो, तर सेम इश्यूवरती वेगवेगळ्या स्टडीज मध्ये जर जनरल काही पॅटर्न आपल्याला मिळत असेल, जनरल त्याच पद्धतीचं काहीतरी कारण, त्याच पद्धतीचे काहीतरी पॅटर्न्स आपल्याला मिळत असतील, तर त्याचा आपल्याला अभ्यास करण्यासाठी किंवा त्या दृष्टीनं क्वालिटेटिव्ह डेटा जो आहे तो उपयोगाला पडतो. आता बघूया क्वांटिटेटिव्ह डेटा. क्वांटिटेटिव्ह डेटा इज अ न्यूमरिकल इन नेचर अँड कॅन बी मॅथमॅटिकली कम्प्युटेड. म्हणजे अगदी अपोजिट आहे पहिल्याच्या. तो डिस्क्रिप्टिव्ह इन अ नेचर होता, हा न्यूमरिकल इन द नेचर आहे आणि तो मॅथमॅटिकली आपण त्याच्यावरती सगळे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन जे आहेत म्हणजे त्याचे कॅल्क्युलेशन्स करू शकतो, पर्सेंटेज असेल, म्हणजे डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक पण आपण वापरू शकतो आणि इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिकचा सुद्धा वापर करू शकतो ऍज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसर्च. कुठल्या डेटावरती? क्वांटिटेटिव्ह डेटा. क्वांटिटेटिव्ह डेटा मेजर्स युजेस डिफरंट स्केल्स. याच्यामध्ये जे मेजर्स वापरले जातात युजेस डिफरंट स्केल, जसं याच्यात वेगवेगळ्या स्केल वापरल्या जातात. स्केल इटसेल्फ क्वांटिफिकेशन. स्केल म्हटल्यावर त्याच्यात आलंच, म्हणजे तो क्वांटिफाईड डेटा आपल्याला प्राप्त होतो स्केल जर असेल, विच कॅन बी क्लासिफाईड ॲज अ नॉर्मल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल. या वेगवेगळ्या स्केल्सचा प्रकार आहे. There may be a standard scales or standard test, but maybe the test is a nominal scale or ordinal scale, interval scale. काही पद्धतीची ती स्केल असू शकते, पण त्या स्केल्सचा वापर केल्यामुळे आपल्याला क्वांटिफाईड स्वरूपाचा डेटा मिळतो. नंबर्स मध्ये आपल्याला डेटा मिळू शकतो. जी काही माहिती आहे ती न्यूमरिकल फॉर्म मध्ये आपल्याला प्राप्त होत असते. They use a systematic standardized approach and employ methods such as a survey and ask questions. तर याच्यामध्ये सर्वे सारखी जी सिस्टमॅटिक मेथड आहे ती स्टँडर्डाइज सिस्टमॅटिक मेथड असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे काय स्टँडर्डाइज याचा अर्थ की कोणत्याही रिस्पॉन्डंटला तो एखादा सर्वे दिला गेला, म्हणजे त्या विशिष्ट वैशिष्ट्य असणाऱ्या एकापेक्षा अनेक रिस्पॉन्डंटला जरी तो सर्वे दिला तर सारख्याच स्वरूपाचे रिस्पॉन्स कलेक्ट करण्याची त्या सर्वेची क्षमता, म्हणजे इट इज अ सिस्टमॅटिक स्टँडर्डाइज सर्वे. तर त्या दृष्टिकोनातून जे क्वांटिफाईड डेटा असतो तो सिस्टमॅटिक स्टँडर्डाइज अप्रोच वापरून सच ॲज अ सर्वे अँड आस्क क्वेश्चन्स तो तयार केलेला असतो. म्हणजे त्यात व्हेरिएशन ऑफ रिस्पॉन्सेस येण्याचं किंवा सब्जेक्टिव्ह टाईपचे उत्तर येण्याचं काहीही कारण त्याच्यामध्ये नाही. जसं आपण बघतो बऱ्याचशा स्टँडर्ड टेस्ट असतात, त्या टेस्टमध्ये त्याची रिलायबिलिटीज किंवा त्याचा आपण म्हणतो ना विश्वसनीयता, सप्रमाणता, रिलायबिलिटी आणि म्हणजे त्याचं जे मूल्य आहे ते आपल्याला मिळालेलं असतं आणि त्याच्यामुळं आपण ती कुठेही वापरू शकतो. म्हणजे वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये आपण ती वापरू शकतो जर त्या स्पेसिफिक क्रायटेरियात ते बसत असेल आपलं जर सॅम्पल. तर म्हणून ती स्टँडर्डाइज अप्रोच आहे. तिथे काही इतकं घाबरायची गरज नाही, म्हणजे रिझल्ट विषयी खात्री आपल्याला मिळते कारण टेस्ट इट सेल्फ स्टँडर्डाइज. तर त्या पद्धतीच्या क्वेश्चन्स आपल्याला याच्यामध्ये विचारता येतात. क्वांटिटेटिव्ह अप्रोच हॅव द ऍडव्हान्टेज दॅट दे आर cheaper to implement, are standardized, so comprehension can be easily made and the size of the effect can usually be measured. आता हे अतिशय इम्पॉर्टंट फीचर क्वांटिटेटिव्ह अप्रोच किंवा क्वांटिटेटिव्ह डेटाचं आहे आणि ते म्हणजे हे कंपॅरेटिव्हली चीपर वे आहे, म्हणजे स्वस्त पडतो. का तर आपण एखादी स्टँडर्ड टेस्ट जेव्हा देतो तेव्हा आपण ती एकाच वेळा 100 लोकांना 200 लोकांना सुद्धा वर्गामध्ये एका ठिकाणी बसवून आपण ती टेस्ट देऊ शकतो आणि मग त्यांच्याकडून ते रिप्लाय ऍट अ टाइम आपल्याला त्या 1.5 तासामध्ये मिळू शकतात. किंवा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात 800, 1000, 2000 लोकांकडून आपण तो डेटा कलेक्ट करू शकतो आणि क्वांटिफाईड स्वरूपाचा डेटा असल्यामुळे तो त्याच्यावरती जे अनालिसिस आणि ह्या प्रोसेस सुद्धा आहेत त्या कंपॅरेटिव्हली इझी होतात. आणि ते स्टँडर्डाइज कंपॅरिझन असल्यामुळं तिथं फार कॉम्प्लिकेशन म्हणा किंवा गुंतागुंत नसते, जितकं की क्वालिटेटिव्ह डेटा अनालिसिस ही अतिशय गुंतागुंतीची गोष्ट आहे. त्याला खूप चांगली मॅच्युरिटी लागते, खूप चांगलं अंडरस्टँडिंग वगैरे लागतं. पण कंपॅरेटिव्हली क्वांटिटेटिव्ह अप्रोच मधलं जे अनालिसिस आहे ते मेकॅनिकल असतं, म्हणजे मशीन कॅन डू इट अशा पद्धतीचं ते
काम असतं, म्हणजे तो मॅन्युअल असतो आपल्याकडे आणि त्याच्या आधारावर आपण त्याचं अनालिसिस करू शकतो. इव्हन आपण डिझाईन केलेल्या क्वेश्चनियर जर क्वांटिफाईड स्वरूपाचे असतील तर त्याचे क्रायटेरिया आपण ऑलरेडी ठरवलेले असतात, त्यामुळे त्याला काही फार प्रॉब्लेम येत नाही. त्या दृष्टीनं ही पद्धती जी आहे ती जास्त उपयोगाची किंवा चीपर ठरते. आता केवळ चीपर ठरते असं नाही, तर इट कॅन बी इझिली मेड अँड द साईज ऑफ इफेक्ट कॅन युजली बी मेजर्ड. आणि त्याचा जो इफेक्ट आहे किंवा इफेक्टचं जे प्रमाण आहे ते सुद्धा आपण खूप सहजपणे मोजू शकतो. The quantitative data collection methods rely on the random sampling and structured data collection instruments. याच्यामध्ये दोन गोष्टी असतात. ह्या कलेक्शन मेथडमध्ये रॅन्डम सॅम्पलिंग वर आधारलेली असते आणि दुसरं स्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन इन्स्ट्रुमेंट त्याच्यासाठी वापरलेले असतात. दॅट फिट डायव्हर्स एक्सपिरियन्स इनटू द प्रीडिटरमाइंड रिस्पॉन्स कॅटेगरीज. आणि त्यामुळं काय होतं तर मोठ्या जनसंख्येला निष्कर्ष लावण्याच्या म्हणजे अभ्यास करायची गरज पडत नाही, म्हणजे सगळ्यांचा अभ्यास करायची गरज पडत नाही, कारण रॅन्डम सॅम्पलिंग करून आपण त्या सगळ्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह घेतलेले आहेत. आणि स्ट्रक्चर डेटा कलेक्शन इन्स्ट्रुमेंट्स असल्यामुळं त्याच्यामध्ये सब्जेक्टिव्हिटी किंवा असं व्हॅरिडनेस असं काहीतरी येण्याची काही संभावना त्याच्यामध्ये नसते. आपल्याला जे प्री डिटर्मिन्ड रिस्पॉन्स कॅटेगरीज आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला रिस्पॉन्स मिळत असतो. दे प्रोड्यूस रिझल्ट्स दॅट आर इझी टू समराइज, कम्पेअर अँड जनरलाइज. आता हे क्वालिटेटिव्ह रिसर्चच्या बाबतीमध्ये सोपं नाहीये हे, म्हणजे समराइज करणं, कम्पेअर करणं जे काही डेटा आलेला आहे, आणि जनरलाइज तर तिथं खूपच कमी चान्स जनरलायझेशनचा असतो आणि तिथं अपेक्षित हे नसतं. पण या ठिकाणी मात्र इट इज इझी टू समराइज, कम्पेअर अँड जनरलाइज. कशाला? तर डेटाला. फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव्ह डेटा, एक्सपेरिमेंट्स, क्लिनिकल ट्रायल्स याच्याकडून आपल्याला क्वांटिटेटिव्ह डेटा प्राप्त होऊ शकतो. ऑब्झर्विंग अँड रेकॉर्डिंग वेल डिफाईन्ड इव्हेंट्स, म्हणजे अगोदरच डिफाईन केलेले, म्हणजे आधीच स्पष्ट, म्हणजे काय काय अपेक्षित आहे ते आधीच जे ठरलेलं असेल तर त्यांना ऑब्झर्व करणं, त्याचं रेकॉर्डिंग करणं, म्हणजे रेकॉर्ड किपिंग करणं. या दृष्टीनं या पद्धतीचा उपयोग होतो. दॅट इज द फीचर ऑफ दिस मेथड. कंटिन्यूइंग द नंबर ऑफ पेशंट्स वेटिंग इन इमर्जन्सी ॲट स्पेसिफाईड टाइम ऑफ द डे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अशा पद्धतीची माहिती याच्यामध्ये असते. ऑब्टेनिंग रिलेव्हंट डेटा फ्रॉम मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, म्हणजे जी मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम आहे किंवा माहितीची माहिती स्टोअर करणारी, मॅनेज करणाऱ्या ज्या सिस्टीम आहेत, मे बी दे आर ऑटोमेटेड सिस्टीम्स ऑर ह्युमन बेस्ड सिस्टीम, तर त्यांच्याकडून सुद्धा रिलेव्हंट डेटा प्राप्त करणं क्वांटिटेटिव्ह डेटामध्ये पॉसिबल आहे. ऍडमिनिस्ट्रेटिंग सर्वे विथ क्लोज एंडेड क्वेश्चन्स, तर या पद्धतीमध्ये मेजर टाइमला काय असतं, तर फेस टू फेस अँड टेलिफोन इंटरव्ह्यू क्वेश्चनियर्स कॅन बी अप्लिकेबल इन दिस. म्हणजे सर्वे घेत असताना तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन्सचा वापर मोठ्या प्रमाणात यात केला जातो. इन क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च, इंटरव्ह्यूज आर मोर स्ट्रक्चर्ड दॅन द क्वालिटेटिव्ह रिसर्च. क्वालिटेटिव्ह रिसर्च मधला इंटरव्ह्यू जो आहे तो इनडेप्थ टाईपचा असू शकतो, तो इतका प्री स्ट्रक्चर्ड नसतो. इंटरव्ह्यू चालू असतानाच जशी गरज असेल त्या पद्धतीनं अजून दुसऱ्या पैलूंवरती प्रकाश टाकता येतो. पण क्वांटिटेटिव्ह स्वरूपाचा डेटा जर मला हवा असेल त्या इंटरव्ह्यू मधून, इन दॅट केस आय हॅव टू स्टिक अप विथ द स्ट्रक्चर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इंटरव्ह्यू. तर ते स्ट्रक्चर्ड स्वरूपाचे इंटरव्ह्यू या स्वरूपाच्या डेटासाठी उपयोगाला. In a structured interview, the researcher asks the standard set of question and nothing more. Structured interview म्हणजे काय, तर जो स्टँडर्ड सेट जो बनवलेला आहे प्रश्नांचा प्रायर टू द इंटरव्ह्यूच्या आधी जो बनवलाय तोच विचारला जातो. दुसरं त्याच्यामध्ये काहीही मनाने ऍड करायचं नाही किंवा त्यातलं काही वगळायचं नाही. म्हणजे प्रिस्क्राइब्ड, म्हणजे आधीच तेच दिलेलं ठरलेलं जे असतं तेच तिथं ऍप्लिकेबल, त्या इंटरव्ह्यू मध्ये ऍप्लिकेबल असतं. पेपर पेन्सिल क्वेश्चनियर्स कॅन बी सेंड टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल अँड सेव्ह द रिसर्चर्स टाइम अँड मनी. याचा फायदा काय होतो, तर रिसर्चरचा टाइम आणि मनी दोन्हीचीही बचत होते. आता मिक्स्ड मेथड, तर मिक्स्ड मेथड मध्ये जसं मगाशी मी बोललो, क्वांटिटेटिव्ह डेटा, क्वालिटेटिव्ह डेटा आणि यांचे जे काही प्लस पॉइंट्स आहेत,
आणि मायनस पॉइंट जे काही डेमेरिट्स आहेत ते वगळून त्यांचे प्लस पॉइंट्स घेऊन आपण दोन्ही मेथडचं कॉम्बिनेशन करतो. इट शुड बी अ सायंटिफिक. पण असं नाही की आपल्याला वाटलं म्हणून केलं, असं नाही. तर ते वैज्ञानिक असलं पाहिजे, त्याचं रॅशनली ते काम केलं गेलं पाहिजे. कॉन्शियसली क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह डेटा कलेक्ट करणं, त्याचं इंटिग्रेशन करणं आणि कन्क्लुजनला येणं, या तिन्ही गोष्टी मिक्स मेथड मध्ये उपयोगाच्या आहेत किंवा केल्या जातात. Mixed methods approach as a design combining both qualitative and quantitative research data techniques and methods within a single research framework. एकाच रिसर्च फ्रेमवर्क मध्ये या दोन्हीचाही वापर केला जातो. Mixed method encompass multifaceted approach that combine to capitalize on strengths and reduce weaknesses that stem from the using a single research design. म्हणजे एकच रिसर्च डिझाईन वापरताना जेव्हा विकनेसेस आहेत ते आपल्याला अवॉइड करता येत आणि केवळ स्ट्रेंथ वापरतो आणि विकनेसेस अवॉइड करतो असं म्हणता येत नाही. पण आपण दोन्ही वापरताना विकनेसेस अवॉइड करून जे त्याच्यातले चांगल्या गोष्टी आहेत त्या आपण इथं वापरू शकतो. आणि तसं एक चांगलं युझिंग सिंगल रिसर्च डिझाईन, एक रिसर्च डिझाईन वापरताना सुद्धा दोन्हीतल्याही चांगल्या गोष्टी आपण तिथं वापरू शकतो. Using this approach to gather and evaluate data may assist to increase the validity and reliability of the research. त्याचा फायदा काय होतो तर या मिक्स पद्धतीनं डेटा, या पद्धतीचा किंवा अप्रोचचा वापर करून डेटा जर घेतला गेला आणि तो डेटा इव्हॅल्युएट केला गेला तर काय होतं, इन्क्रीज द व्हॅलिडिटी अँड रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च. तुम्हाला असा प्रश्न येऊ शकतो पेटच्या परीक्षेमध्ये की व्हॉट इज द रिझन, म्हणजे त्याचं रिझन काय आहे की बाबा मिक्स मेथड, वाय यू आर चूजिंग द मिक्स मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ केस. काहीतरी सिनॅरिओ तुम्हाला दिलाय अँड वाय तुम्ही त्यासाठी मिक्स मेथड का वापराल, आणि खाली पर्याय दिलेले आहेत. इट इन्क्रीज द व्हॅलिडिटी अँड रिलायबिलिटी. इट मग अशा पद्धतीचं जर असेल खाली म्हणजे ऑप्शन तुम्हाला, तर तुम्ही त्याला निवडू शकता. किंवा याला पर्यायी ऑप्शन काय असू शकतं, इट्स गिव्ह द आन्सर टू द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन्स ऑफ द रिसर्च. म्हणजे अशा पद्धतीच्या मिक्स मेथडचा वापर केला. मिक्स मेथड्स आर युजफुल इन हायलाइटिंग कॉम्प्लेक्स रिसर्च प्रॉब्लेम्स. म्हणजे ही पद्धत कधी उपयोग आहे, गुंतागुंतीच्या स्वरूपाच्या ज्या रिसर्च प्रॉब्लेम्स असतात, स्ट्रेट फॉरवर्ड नाही, म्हणजे मग त्याला क्वांटिफाईड डेटाच्या मदतीने आपल्याला ते करता येईल. पण कॉम्प्लेक्सिटी आहे तिथं, म्हणजे सगळं न्यूमेरिकल मध्ये नाहीये, काहीतरी भावनांमध्ये पण अडकलेलं आहे, काहीतरी त्याच्या विचारांमध्ये आहे, त्याच्या सामाजिक अनुभवांमध्ये, बायसेस मध्ये काही गोष्टी दडलेल्या आहेत. असं असेल जसं दिसतंय म्हणजे आपल्याला क्वांटिफाईड दिसणाऱ्या गोष्टी करता येतात, पण न दिसणाऱ्या गोष्टी ही काही त्याच्या हिडन मध्ये असतील, म्हणजे कॉजेस मध्ये. तर अशा गोष्टींना हायलाइट करण्यासाठी, अशा कॉम्प्लेक्स गोष्टींना हायलाइट करण्यासाठी अशा पद्धतीच्या मिक्स मेथडचा उपयोग होतो. या वेगवेगळ्या 3 अप्रोचेस जे आहेत डेटाच्या संदर्भातले किंवा टाइप्स सुद्धा आपण त्याला म्हणायला हरकत नाही. वन इज द क्वालिटेटिव्ह डेटा, दुसरा होता क्वांटिटेटिव्ह डेटा, आणि तिसरा होता मिक्स डेटा. तर त्याचा आपण विचार केला. डेटा कलेक्शन प्रायमरी अँड सेकंडरी. देर आर 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेस. डेटा जेव्हा आपण कलेक्ट करतो तेव्हा तो कोणापासून आपण डेटा घेतोय, व्हॉट इज द सोर्स ऑफ द डेटा, याच्यावरून 2 पुन्हा टाइप्स पडतात, आणि ते म्हणजे प्रायमरी अँड सेकंडरी. तर प्रायमरी डेटा जो आहे तो डेटा दॅट हॅज बीन कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्सेस. व्हॉट इज प्रायमरी डेटा? प्रायमरी डेटा तो आहे जो त्या फेनॉमेनामध्ये किंवा त्या परिस्थितीचा ज्यांनी प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेला आहे, त्या फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स लोकांकडून मिळवलेला डेटा म्हणजे प्रायमरी डेटा. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स, इट शुड बी अ फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स. कशाचा फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स? whatever phenomena we are going to study in our research. आपल्या संशोधनात आपण ज्या कुठल्या बाबीचा अभ्यास करतोय त्या बाबीविषयीचा फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स असणाऱ्यांकडून प्राप्त केलेला डेटा
It is called a primary data. Again, primary data has not been published yet and is more reliable, authentic, and objective. Another characteristic of primary data is yet it is not published. तो अद्याप पब्लिश झालेला नाहीये, म्हणजे कुणालाही तो प्रकाशित केला गेलेला नाहीये. मग ते पब्लिश याचा अर्थ पुस्तक रूपाने असू शकतो, ओरली असू शकतो, टॉकच्या रूपाने असू शकतो, प्रेझेंटेशनच्या रूपाने असू शकतो. येट इट इज नॉट पब्लिश्ड, म्हणजे तुम्हाला मिळण्याआधी तो पब्लिश झालेला नाही, आणि झाला असेल तर पब्लिश झालेला यूज करत असेल तर लगेच तो सेकंडरी डेटामध्ये जाईल. म्हणून तो जास्त मोर रिलायबल, ऑथेंटिक अँड ऑब्जेक्टिव्ह तो डेटा असतो. प्रायमरी डेटा हॅज नॉट बीन चेंज्ड ऑर अल्टर्ड बाय ह्युमन बीइंग. दिस इज अनदर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रायमरी डेटा. म्हणजे जे जसं घडलं तसं घडलं, जे आहे ते आहे, त्याच्यात अजून कोणी काही आपल्या मनाने, आपल्या बायसेस, आपल्या अनुभवाने, आपल्या विचारांनी काही ऍड केलेलं नाही. डेटा हॅज नॉट बीन चेंज ऑर अल्टर्ड बाय ह्युमन बीइंग्स. बघा, एखादी न्यूज जेव्हा येते, म्हणजे घटना घडली आणि त्याची बातमी वर्तमानपत्रात येते, तेव्हा ती बातमी कशा स्वरूपाची असते? इट इज अल्टर्ड बाय ह्युमन. देर आर वन एडिटर, देर आर वन रिपोर्टर. ते दोघं काय करतात तर त्या माहितीला किंवा त्या घटनेविषयीचे जे फॅक्ट्स असतील त्यांना ते चेंज ऑर अल्टर्ड करतात बाय द ह्युमन बीइंग्स. Therefore, its validity is greater than secondary data. म्हणजे प्रायमरी डेटामध्ये अशा पद्धतीचा मानवी हस्तक्षेप अद्याप झालेला नसतो, त्यामुळं तो अधिक विश्वासार्ह डेटा आहे आणि तो अधिक ग्रेटर व्हॅलिडिटी, त्याची वैधता आपण मानू शकतो, सप्रमाणता आपण मानू शकतो. आता मग सेकंडरी डेटाच्या बाबतीत काय? Data collected from the source that has already been published in any form is called the secondary data, called as a secondary data. मग वर्तमानपत्रातली बातमी असेल, एखादा रिपोर्ट असेल, एखादा रिसर्च असेल, एखादा रिसर्च पेपर असेल, किंवा डेटा रिपोजिटरीज असतील, गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळ्या डेटा जे स्टोअर करून घेतात ते असतील. म्हणजे सेन्ससचा डेटा लोकांकडून कलेक्ट केला, तो शासनाने रिपोर्ट बनवला, इट इज ऑन वेबसाईट, वी कॅन यूज दिस डेटा. But in that case, this is the secondary data. त्याच्याऐवजी आपण ज्या लोकांकडून सेन्सससाठी डेटा घेतलाय त्यांच्याकडून जर माहिती घेतली तर इन दॅट केस दॅट विल बी द प्रायमरी डेटा. मग तो प्रायमरी डेटा होईल. तर सेकंडरी डेटा म्हणजे अशा पद्धतीचा डेटा की कोणीतरी ऑलरेडी कलेक्ट केलेला आहे, त्याला ऑर्गनाइज केलेला आहे आणि पब्लिश केलेला आहे. The review of literature in any research is based on the secondary data. जो आपण रिव्ह्यू घेतो, कुठल्याही रिसर्च साठी रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर आपण करतो, तो सेकंडरी स्वरूपाचा डेटा असतो. म्हणजे काय तर रिव्ह्यू केल्यानंतर आपल्याला डेटा ऑलरेडी मिळतो. म्हणजे आपलं संशोधन कम्प्लीट का होत नाही तर रिव्ह्यू हा सेकंडरी डेटा असतो. आपण तो सेकंडरी डेटा प्रायमरी डेटा घेऊन मग तपासून बघतो. आपण आपल्या हायपोथेसिस ह्या सेकंडरी डेटाच्या आधारावर टेस्ट करत नाही. आपल्या संशोधनात आपण त्या प्रायमरी डेटाच्या बेसवरती करत असतो. काही वेळा हरकती नाही, म्हणजे समजा इकॉनॉमिक्सचा एखादा रिसर्च असेल तर देयर इज अ डेटा इन अ रिपॉझिटरी ऑफ गव्हर्नमेंट रिपॉझिटरी, आपण तो घेऊन त्याच्यावरून कन्क्लुजन्स काढायला, निष्कर्ष काढायला काही हरकत नाही. शेअर मार्केट विषयीचे जे रिसर्च आहेत, मार्केट रिलेटेड रिसर्च, प्रत्येकाने जाऊन पुन्हा मार्केटमधून तीच माहिती गोळा करण्यात काही अशा केसमध्ये ते युजफुल होऊ शकतं. पण बहुतेक वेळा म्हणजे संशोधनाला अधिक विश्वसनीय करायचं असेल, म्हणजे त्याला ऑथेंटिक, रिलायबल करायचं असेल तर प्रायमरी डेटाचा त्याला आधार असला पाहिजे. म्हणून आपण संशोधनात रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, व्हॉट इज द सेकंडरी डेटा, अँड मग पुढे आपण काय करतो, चौथ्या प्रकरणामध्ये आपण कलेक्ट केलेला प्रायमरी डेटा आणि रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचरचा सेकंडरी डेटा, या दोन्ही मधून जे अंडरस्टँडिंग क्रिएट होतो, अनालिसिस मधून जे कन्क्लुजन्स क्रिएट होतात, त्याच्यावरून एका प्रॉपर रिसर्चचे निष्कर्ष प्राप्त होतात. इट इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर सम अदर पर्पज. दॅट इज द रिझन. म्हणजे आपण या डेटावर म्हणजे इतका भरोसा का करत नाही तर secondary data is collected by someone else for some other purpose. तुमच्या संशोधनाची उद्दिष्ट वेगळी आहे,
त्या व्यक्तीने त्याच्या उद्दिष्टांसाठी तो कलेक्ट केलेला आहे, म्हणून तो तुमच्या कामासाठी किती फिट बसेल. It may be a 90% suitable, it may be a 80% suitable, it may be a 95% suitable. It means there are a chance to तिथं काहीतरी जागा आहे, म्हणजे आपलं चूक होण्याला, काहीतरी राहून जाण्याची जागा त्याच्यामध्ये आहे. Some other purpose, but being utilized by the investigator for another purpose. This is the secondary data. Then data collection सोर्सेस. आता हे आपण ठरवायचं कसं सेकंडरी डेटा, तर त्याच्यासाठीचे जे सोर्सेस आहेत त्याच्यावरून आपण सांगू शकतो की इट इज अ सेकंडरी डेटा अँड इट इज अ प्रायमरी डेटा. फॉर द प्रायमरी डेटा देर आर सोर्सेस लाईक एक्सपेरिमेंट्स, जे आपण एक्सपेरिमेंट्स करतो, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, मे बी इट इज अ लॅबोरेटरी एक्सपिरियन्स, मे बी इट इज अ सोशल एक्सपेरिमेंट्स, मे बी इट इज अ फील्ड बेस्ड ऍक्टिव्हिटी. तर त्या एक्सपेरिमेंट्स मधून जो डेटा क्रिएट होतो, जनरेट होतो, इट इज अ प्रायमरी डेटा. देन सर्वे इन ह्युमॅनिटीज अँड सोशल सायन्सेस, और सायन्स मध्ये सुद्धा जेव्हा ह्युमन्सशी रिलेटेड गोष्टींचा अभ्यास होतो, फॉर एक्झाम्पल आजार, साथीचे रोग वगैरे, इन दॅट केस दे कॅन ऑल्सो कंडक्ट द सर्वे. तर तो जो सर्वे प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत जाऊन, म्हणजे फील्ड फेनोमेना मधल्या पार्टिसिपेंट पर्यंत जाऊन त्यांच्याकडून जी माहिती सर्वेच्या रूपाने कलेक्ट केलेली असते, दॅट इज द प्रायमरी डेटा. क्वेश्चनरी, पुन्हा प्रश्नावली, जी प्रत्यक्ष जो त्याचा सहभागीदार आहे त्या संशोधन विषयाचा, त्याच्याकडून प्रश्नावली भरून घेतली. ही क्वेश्चनेअर सुद्धा काय होतं, सोर्स ऑफ प्रायमरी डेटा. इंटरव्ह्यू इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ प्रायमरी डेटा. ऑब्झर्वेशन, इट मे बी अ field based observation, it may be a phenomenological observation, it may be participatory observation. कोणत्याही प्रकारचं ऑब्झर्वेशन असू द्या, पण इट प्रोड्यूस अ प्रायमरी डेटा. तर कारण आपण प्रत्यक्ष त्या गोष्टीचा अनुभव घेतोय, तिथे जाऊन पाहतोय. म्हणजे घटना घडली ते पेपरात वाचणं वेगळं, आणि घटना स्थळावर जाऊन निरीक्षण करणं आणि मग तथ्य संकलित करणं, ह्याला निरीक्षण असं म्हणतो. इन दॅट केस इट इज कम अंडर द प्रायमरी डेटा सेट. फोकस ग्रुप डिस्कशन, म्हणजे जे लोकांवर संशोधन करायचं त्यांच्यामध्ये जाऊन त्यांच्या ग्रुप सोबत फोकस, आपल्या विषयाला फोकस ठेवून डिस्कशन करणं, इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ द प्रायमरी डेटा. देन फील्ड विजिट्स, केस स्टडीज, ही सगळी जी माध्यमं आहेत, सोर्सेस आहेत, ते प्रायमरी डेटाचे आहेत. Sources of secondary data like books, records, biographies, newspapers, published census or other statistical data, data archives, internet articles, research articles by other researchers. It may be published in a journals or edited books, databases. All these sources are the secondary sources of data. Now, there are some मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. जसं आपण म्हणालो की आपण 4 मेन ज्या मेथड्स आहेत त्याचा विचार करणार. फर्स्ट इज अ ऑब्झर्वेशन. ऍज पर द सेल्टेज, Jonda, Densich and Cook, they have made a very good quotation or a statement which I am attributing here. Observation is not only one of the most pervasive activity of daily life, but it is also a primary tool of scientific inquiry. That observation हे मानवी संशोधनात किंवा जेव्हा म्हणजे माणसाने संशोधनाला सुरुवात केली, नवीन काहीतरी शोधायला सुरुवात केली, त्याची सुरुवातच मुळात ऑब्झर्वेशन पासून झालेली. म्हणजे आजचं विज्ञान हे आजही विज्ञानात ऑब्झर्वेशनला तितकंच महत्व आहे, पण अगदी प्राचीनतम काळापासून माणसाने जे नवीन नवीन शोध लावले, ज्या गोष्टी त्यांनी क्रिएट केल्या, जे निष्कर्ष त्यांनी काढले, ते सगळ्यांचा आधार जो होता तो ऑब्झर्वेशन. आता हे केवळ शोधांसाठीच आहे असं नाही. आपल्या जीवनातल्या प्रत्येक गोष्टीत आपण निर्णय जो घेतो, म्हणजे आपण जो निर्णय करत असतो, एखादा कन्क्लुजनला येत असतो, डिसिजन घेतो, अगदी स्वयंपाक करताना गृहिणी जसे निर्णय घेते, म्हणजे काय, किती, कसं करायचं, ऑल दॅट ऍक्टिव्हिटीज आर बेस्ड ऑन द ऑब्झर्वेशन. दॅट्स वाय प्रिव्हिसिव्हली ऍक्टिव्हिटीज ऑफ डेली लाईफ, म्हणजे हे आपल्या जीवनातील एक म्हणजे अतिशय
अति नित्याने वापरली जाणारी ही कृती आहे ऑब्झर्वेशन. पण ती केवळ अशी आपल्या दैनंदिन जीवनात वापरायची कृती नाही, बट इट इज ऑल्सो अ प्रायमरी टूल ऑफ सायंटिफिक इन्क्वायरी. वैज्ञानिक चौकशी किंवा इन्क्वायरी, शोध, माहिती घेण्याचं ऑब्झर्वेशन एक महत्वाचं टूल आहे. त्यामुळे दॅट इट इज अ फर्स्ट अँड बेसिक मेथड ऑफ रिसर्च. म्हणजे ही पहिली मेथड आहे संशोधन करण्याची. लहान मूल सुद्धा संशोधन करतं या पद्धतीचा वापर करू. इट मे बी दॅट इज नॉट आजच्या आपल्या क्रायटेरिया, सायंटिफिक क्रायटेरियामध्ये, सिस्टीम मध्ये बसत नसेल, पण तरी सुद्धा ते त्या गोष्टी ते करतं ऑब्झर्वेशन. What are the characteristics of observation technique? Full use of human senses. Observation ही जी गोष्ट आहे ती सेन्सेस जे आहेत माणसाला मिळालेले 5 ज्ञानेंद्रिय, ज्याला म्हणतो 5 सेन्सरी ऑर्गन्स, जे की एक्सटर्नल वर्ल्ड मध्ये जे जे काही चाललेलं आहे त्या सगळ्या गोष्टींना टिपत असतात, ते सगळ्या गोष्टी कॅच करत असतात आणि त्या गोष्टी संवेदन इंद्रियांच्या माध्यमातून कडे लक्ष जातं. त्याच्या नोंदी आपण घेतो, त्याची नोंद आपण घेतो. ती नोंद घेणं म्हणजेच काय तर ऑब्झर्व करणं. काय होतंय ते नोंद घेणं, का होतंय त्याची नोंद घेणं, कसं होतंय त्याची नोंद घेणं. मे बी सम पीपल आर डुईंग दिस वर्क इन अ व्हेरी सरफेस लेवल, बट some people are very rigorously observing the things. म्हणजे काही माणसं खूप सखोलपणे गोष्टींचं निरीक्षण करतात, सूक्ष्मपणे गोष्टींचं निरीक्षण करतात. काही जण खूप वरवरचं निरीक्षण करतात. आता असं का करतात? ज्याची त्याची गरज वेगवेगळी असते. म्हणजे मला त्याचं कामाचं असेल तर मी सूक्ष्म निरीक्षण करेन, माझ्या कामाचं नसेल तर मी त्याला तितकं बारीकीने निरीक्षण करणार नाही. साधी गोष्ट आहे. व्हॉट इज माय नीड? म्हणजे ऑब्झर्वेशनच्या बिहाइंड द ऑब्झर्वेशन देर आर 2-3 मोटिवेशन्स. लाईक फर्स्ट मोटिवेशन इज अ क्युरिओसिटी. आपण कोणत्याही गोष्टीला ऑब्झर्व का करतो तर त्याचं कारण, अरे तिथं काय आहे हे बघायचं असतं. वी आर क्युरियस अबाउट द सेन्सेस, जे की आपल्याला संवेदना मिळत आहेत बाहेरून, जे उद्दीपक बाहेर आहेत, जे की तुमच्या संवेदन इंद्रियांना चेतवत आहेत, ते काय आहे हे पाहण्याची क्युरिओसिटी असते. देयर आर अनदर वन रिझन. फर्स्ट तर क्युरिओसिटी आहे. दुसरं मे बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑर द इश्यू. तर काहीतरी प्रॉब्लेम असेल, म्हणजे आपली काहीतरी समस्या असेल त्याविषयी. इन दॅट केस आपण लाईट बंद पडली घरातली की मग आपण वायर कुठे आहे, स्विच कुठे आहे, कुठं तुटला असेल हे ऑब्झर्व करतो. अदरवाईज आपण त्याच्याकडे पाहण्याचं काही कारण नाही, त्याचं निरीक्षण करण्याचं. म्हणजे इफ देर इज अ प्रॉब्लेम देन वी आर गोइंग टू ऑब्झर्विंग थिंग्स. इफ देर इज अ समथिंग न्यू, इन दॅट केस बाय द क्युरिओसिटी आपण ते ऑब्झर्व करत असतो. आता तिसरं अजून काय कारण आहे तर देर इज अ नीड. आपल्याला काहीतरी गरज आहे. मला भूक लागली तर माझी शोधाशोध सुरू होईल, काय खायला मिळेल याची, किंवा मला काहीतरी करायचंय आणि त्यासाठीचे इन्स्ट्रुमेंट पाहिजे. मग ते कसं होईल, कसं केलं जातं, काय, म्हणजे साधे गणित आहे. आपल्याला एखादं घर नवीन घ्यायचं म्हटलं की आपल्याला जिथं तिथं तेच दिसायला लागतं. ब्रोकर, घर, बांधकामांचे वेगवेगळे नमुने हे सगळे आपल्याला दिसायला लागतात. त्याचा अर्थ काय तर पहिलं तर क्युरिओसिटी, दुसरा कंपोनंट आहे प्रॉब्लेम, तिसरा कंपोनंट आहे नीड. तुमची गरज आहे का, ती गरज आहे, नीड आहे तुम्हाला. तर ह्या कारणांमुळं आपण काय करत असतो, निरीक्षण करत असतो. आता तुम्ही जर बघाल तर संशोधनाची कारणं काय आहेत, संशोधन का करायची किंवा का केली जातात, तर त्या संशोधन करण्यामागे सुद्धा याच मूलभूत गोष्टी कारणीभूत आहेत. म्हणजे संशोधकाला एकतर जिज्ञासा असते म्हणून तो संशोधन हातात घेतो. आणि या पद्धतीच्या संशोधनाला तुम्हाला माहिती आहे काय म्हणतात, या पद्धतीच्या संशोधनाला, जे जिज्ञासेतून हाती घेतलेल्या संशोधनाला कुठल्या पद्धतीचं संशोधन म्हणतात, कुठल्या प्रकाराचं संशोधन म्हणतात, सांगा बरं चार्ट मध्ये. मी पाहतोय चार्ट बॉक्स. क्या पूछ रहे हैं? हम जो क्यूरियोसिटी के बेस पर जो रिसर्चेस करते हैं या स्टार्ट करते हैं, उस रिसर्च के अलग अलग टाइप्स में किस टाइप में हम उसको कंसिडर करते हैं?
Someone is this group who is not able to understand Marathi. Is there anyone? असे असतील तर मला सांगा, मी हिंदी मराठी सुद्धा घेऊ शकते, हिंदी आणि इंग्लिश मध्ये पण घेईन. येस, ओके ओके. सॉरी फॉर मी जेवढं मराठी बोललो मग तेवढं तुम्हाला फारच कठीण गेलं असणार. कोणीच रिस्पॉन्स देत नाही. आपण तुम्ही लोक आहेत का माझ्यासोबत? I have asked one question. When we make the research, if our research is based on the curiosity, then what type of research it will be? जर हम अगर अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए संशोधन करते हैं तो वो संशोधन किस प्रकार के संशोधन में आएगा? Qualitative. Yeah, maybe it is a qualitative. Qualitative is not a type of research. It is the approach of the research. But it is a correct answer. उस दिशा में जाने वाला आंसर है. जब हम और कोई बता रहा है, Fundamental research. Absolutely correct. That is the fundamental research. आइंस्टाइन है या फिर ये जो लोगों ने जो रिसर्च किया, पहले लोगों ने, मतलब क्या जरूरत थी उधर पृथ्वी किसके बाजू में घूमती है, किसके इर्द गिर्द घूमती है, या सूर्य घूमता है, ये क्या जरूरत थी? Most of the fundamental researchers are based on the curiosity. तो ह्यूमन क्यूरियोसिटी के ऊपर ये सारे फंडामेंटल रिसर्च जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं. अभी दूसरा जो है प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च जो होते हैं वो मूलभूत रिसर्च. हाँ बरोबर माधवी चव्हाण मॅडम, मराठीत लिहिलात तरी चालेल, हिंदीत लिहिलात तरी चालेल, पण तुम्ही माझ्यासोबत आहात हे मला कळलं पाहिजे. म्हणजे जिज्ञासेवर आधारलेली संशोधनं ही बऱ्याचदा बहुतांश वेळेला ती मूलभूत स्वरूपाची असतात. बहुत अधिक बार वो मूलभूत या जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च होते हैं. दूसरे जो प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च होते हैं ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी इन द कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट. कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट में तालमेल नहीं है, इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम. वहां कुछ तो भी इश्यू है भाई, नहीं एडजस्ट हो रहा है, हम दोनों मेल नहीं खा रही चीजें जैसे चाहते थे वैसे. तो उस टाइप के रिसर्च को क्या कहते हैं? फिर उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रॉब्लम बेस्ड जो रिसर्चर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Apply research. Yeah, it may be most of time that type of researchers are called applied researchers. हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी ज्ञान हमारे पास था पहले से उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, एक नया तरीका खोज लेते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. दैट इज द अप्लाइड रिसर्च. और दूसरा जैसे मैंने कहा कि नीड बेस्ड रिसर्च, ये दोनों तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके के रिसर्च हो सकते हैं. जरूरत अगर है, अभी कोविड आने के बाद जो रिसर्चर्स कंडक्ट हुए वो अप्लाइड रिसर्च भी हो सकते हैं, कुछ फंडामेंटल रिसर्चर्स भी उसमें आ सकते हैं. एक्शन रिसर्च जो होते हैं वो एक्शन रिसर्च भी प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च होते हैं. मुझे प्रॉब्लम आया है, वो रिजॉल्व करने के लिए मैंने जो भी रिसर्च किया है, दैट इज कॉल्ड द एक्शन रिसर्च. तो एक्शन रिसर्च जो भी है वो इस तरह का रिसर्च होता है जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम से रिलेटेड, इसलिए हम उसको एक्शन रिसर्च करते हैं. नाउ अभी हम देखते हैं स्लाइड पर बहुत 3-4 लोगों ने खाली रिप्लाई दिया. 50 पीपल आर इन क्लास. अगर 52 है तो मान लो 2-3 लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से है, तो बाकी 25 लोग भी एक शब्द में नहीं लिख सकते, तो मतलब नहीं है फिर इस तरह की प्रैक्टिसेस का. छोड़िए, जाने दो. फुल यूज ऑफ ह्यूमन सेंस. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑब्जर्वेशन का? ऑब्जर्वेशन इज अ कंप्लीटली बेस्ड ऑन ह्यूमन सेंस. अगर हमारे पास आंखें नहीं है, कान नहीं है, या सुनने की सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है अच्छे, तो हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वीक हो सकता है. डोमिनेंटली ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू द आईज. तो हमारी जो निरीक्षण जो है वो दृष्टि से संबंधित है, पर इसका मतलब ये नहीं कि केवल आंखों से ही ऑब्जर्वेशन हो सकता है. जब क्लासिकल म्यूजिक चलता है तो हम आंखें बंद करके उसको ऑब्जर्व करते हैं. तो
all sensory organs are useful to observe things. तो उनके द्वारा चीजें ऑब्जर्व होती है, बट डोमिनेंटली ऑब्जर्वेशन बिलोंग करता है वो आंखों से या दृश्य संवेदनाओं से. डेलिब्रेटेड एंड माइक्रो स्टडी. ऑब्जर्वेशन जो है, ये जो मेथड है, इट शुड बी डेलिब्रेटेड. ये ऐसे अनावधाना नहीं करायचे, मतलब ऐसे बिना किसी मकसद से किया जाने वाला नहीं है. इट्स अ डेलिब्रेटेड एंड माइक्रो स्टडी. ये सूक्ष्म निरीक्षण इसमें निहित होता है और ये सहेतुक होती है. हेतु के साथ क्या कहते हैं हम, डेलिब्रेट लेवल मकसद के साथ की जाने वाली मेथड है. डायरेक्ट स्टडी. इट इज अ, ये डायरेक्टली है, जो भी घट रहा है उससे डायरेक्ट कनेक्ट होने की बात है, उसको महसूस करने की, एक्सपीरियंस करने की बात है. तो ये जो डेटा है या ये जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, ये डायरेक्टली चीजों से कनेक्ट होने की टेक्निक है. टू नो अबाउट द म्यूचुअल एंड कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप. तो ऑब्जर्वेशन से क्या होता है कि दो चीजें हैं, उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है. मतलब ये स्विच ऑन होने से बल्ब जलता है, तो व्हाट इज द causal effect relationship or a mutual relationship with the two things. तो बादल गड़गड़ा रहे और बारिश हो रही, what is the mutual relationship between them. तो cause and effect में भी सेम उस तरह के रिलेशनशिप को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत प्राथमिक, मतलब बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला तरीका. इंपेरिकल स्टडी. इंपेरिकल मतलब क्या है, जो एविडेंस बेस है, जो अनुभवजन्य है, अनुभव कर सकते हैं जिन चीजों को हम अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा या फिर एटलीस्ट मतलब इसके द्वारा नहीं करे तो भी थ्रू द कॉग्निटिव प्रोसेसेस और कॉग्निटिव स्किल्स वी हैव टू फील दैट, वी हैव टू एक्सपीरियंस दैट थिंग. तो इंपेरिकल स्टडीज के लिए भी ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी गुड वे. बिहेवियरल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव. तो एक व्यक्ति के वर्तन का अध्ययन करने के लिए या व्यक्तियों के समूह में व्यक्तियों के वर्तन का अध्ययन करने के लिए हमारे पास किसी किताब को पढ़ के उन लोगों के वर्तन के बारे में अध्ययन नहीं हो सकता, या फिर कुछ फोटोज देख के उसका अध्ययन नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज अ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन. तो जब वो कर रहे हैं, वो बिहेव कर रहे हैं, दैट टाइम वी हैव टू ऑब्जर्व इट और उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसको हमें डेटा ऑब्जर्वेशन के बेस पर वो डेटा क्रिएट करना पड़ेगा. तो these are the characteristics of observation techniques. Type of observation. Type of observation, first is a uncontrolled observation. This is the uncontrolled observation, and another one is a controlled observation. We will discuss in next slide in the detail. In uncontrolled observation, there are 3 types: participant, non-participant, and quasi-participants. Means partially participated type of observation. We have to discuss it. Controlled, uncontrolled observations का मतलब क्या है कि आप जिन लोगों को ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उन लोगों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. दे हैव टू डू व्हाटएवर दे वांट. उनको जो करना है, जैसा करना है वो करते रहे, मैं अपना दूर से आपको देख के ऑब्जर्व करूंगा. कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मीन्स क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं और उनको मैं ऑब्जर्व करूं, दैट इज द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, बिकॉज क्लासरूम इटसेल्फ अ कंट्रोल्ड एक्ट, मतलब कंट्रोल की जगह है. तो वो जो है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में किसी भी मॉब में हम कर रहे हैं या बच्चे खेल रहे हैं, दैट टाइम आई एम ऑब्जर्विंग देम एंड नोटिंग द थिंग्स टू क्रिएट द डेटा. This type of observation is uncontrolled observation. Laboratory observations always a controlled observation. Laboratory में जो observations होते हैं वो सारे controlled observations होते हैं, because variables are controlled in that thing. वहां पर सारे variables को control किया हुआ होता है. Sometime controlling की जो बात है वो जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है उनका कंट्रोलिंग, जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसका कंट्रोल. तो ये दोनों चीजों पर ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वर जो है उसका भी काम अगर स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन से जा रहा है, इन दैट केस इट इज अ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बाय द ऑब्जर्वेशन चार्ट और ऑब्जर्वेशन टूल, हु इज
controlling observation tool or a observation checklist or whatever rubrics are controlling the observation. There are three subtypes or sub categories of controlled observation. One is a participant. जब हम ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं तो उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना, उन्हीं का एक हिस्सा होके उनके बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करना. बहुत बार इथनोग्राफिकल स्टडीज में या आदिवासी लोगों के जीवन के बारे में, संस्कृति के बारे में जानने के लिए इस तरह के पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जो टेक्निक है वो उपयोग की जाती है. वहां जाना, रहना, उनके तौर तरीके से रहना, घुल मिल जाना, पता भी ना चले उनको कि ये कहीं बाहर से आए हुए, ये कुछ ऑब्जर्व कर रहे, इस तरीके से अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा बनाकर, लेकिन मैं एक रिसर्चर हूँ याद रखते हुए अपना ऑब्जर्वेशन उस ग्रुप का करते रहने को, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. Then another type is non-participative or a non-participant observation. तो ये ऑब्जर्वेशन कैसा है कि आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन जाते. जैसे हम क्लासरूम में जाकर एक कोने में बैठ जाते हैं और पूरा टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसे चल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब हम लेसन ऑब्जर्वेशन करते वक्त करते हैं. दैट इज द नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. तो मेरा उस प्रक्रिया में कोई सहभाग नहीं, मैं बस बाहर से जाके वहां बैठा हूं और जो क्या कहते हैं, न्यूट्रली आई एम ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड नोटिंग ऑल द whatever happening there. This type of observation is non-participant observation. बहुत बार हम इस तरह के observations का उपयोग करते हैं क्योंकि participant observation is too much time consuming. इसको बहुत टाइम लगता है और बहुत इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए रिसर्चर की. तो ये सारी चीजें हैं. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कम टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में जाकर अपना ऑब्जर्व कर लिया, कर लिए, फटाफट अपना काम कर लिया, हो गया. तो इस तरह से नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है. कोसी पार्टिसिपेंट्स मीन्स कुछ पार्टिसिपेट किया है, कुछ मतलब कुछ चीजों में पार्शियली पार्टिसिपेट है, लेकिन जो पार्टिसिपेशन है वो केवल डेटा कलेक्शन के लिए ही है. मतलब केवल डेटा कलेक्शन, अपना काम हो गया, निकल लिए, उससे ज्यादा बाकी की चीजों में मुझे नहीं पड़ना. आई एम नॉट द प्लेयर ऑफ द टीम. मतलब मैं उनमें सहभागी हूं लेकिन मैं प्लेयर नहीं. मैं बस आपके कुछ कामों में हूं, आपके साथ हूं, आपके साथ जा रहा हूं टीम के साथ, लेकिन मैं आपका जो कोर रोल है उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं हूं. जो बाकी टीममेट्स या क्रू, कैबिन क्रू, इस तरह से साथ में होना, इट्स अ पार्शियली पार्टिसिपेशन. तो ये हो सकता है समटाइम जब हम बिहेवियरल स्टडीज में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के स्टडीज में इस तरह के पार्टिसिपेशन आते हैं कि बच्चों के साथ टीचर गेम खेलते हैं. मतलब गेम खुद खेलना, उनकी जो भी चीजें मिलती है वो अपनी उसकी नोटिंग करना, फिर आगे निकल जाना. तो दैट इज द कोसी पार्टिसिपेंट्स या पार्शियली पार्टिसिपेशन. बोथ आर नो. जो लोग काम करे उनको भी पता है ये हमारे नहीं है, रिसर्चर को भी पता है आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट टीम. दोनों को पता है, बस जितना जरूरी है उतना पार्टिसिपेशन यहाँ हो रहा है. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो लोग हैं, जो जिनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा अपना ही है, अपने एक समूह का हिस्सा है. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो है उनको बिल्कुल वो व्यक्ति अपना लगता ही नहीं, रिसर्चर से उनका कोई नाता नहीं. अंडरस्टूड? क्योंकि इसके बेस पर आपको सिनेरियो दिया जा सकता है और आपको आइडेंटिफाई करना है दिस इज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन. ओके. Tools and instruments for observation. What are the tools and instruments? One, pre-observation template. It's a very useful tool. अब हमें जब किसी चीज को ऑब्जर्व करना है, उसका निरीक्षण करना है, हम जा रहे, हम जब जा रहे हैं बाहर, समझो अभी हम विजिट करने जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व. मैं जा रहा हूँ महाबलेश्वर घूमने, तो इस एक्ट में, और मैं जा रहा हूँ महाबलेश्वर के इस पर्टिकुलर चीज को स्टडी करने में. I'm going to Mahabaleshwar to study the weather. I'm going to Mahabaleshwar to study the ecosystem. तो इस तरह से अगर मेरा पर्पस है, तो in that case I have to make a pre-observation template.
मुझे क्या क्या देखना है। पर देखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे किन किन चीजों को मेरा फोकस रहेगा, कौन कौन सी चीजें मेरा ध्यान आकर्षित करनी चाहिए और कौन सी चीजों को मुझे खास करके नोट करना है ऑब्जर्वेशन। और ये सारी चीजें क्लियर हो, इसके लिए प्री ऑब्जर्वेशन टेम्पलेट वी कैन यूज, प्री ऑब्जर्वेशन टेम्पलेट फॉर द ऑब्जर्वेशन, and it is one of the instrument of observation. Then another instrument of observation sample template. पहला का है, पहला जो है वो केवल टेम्पलेट है, लेकिन उसमें कैसे ऑब्जर्व करना है, कहाँ टिक करनी है, कहाँ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है, उसका कुछ भी नहीं। बट देयर इज अनदर सैंपल टेम्पलेट, एक सैंपल करके दिया हुआ है। जैसे छोटे बच्चों को नर्सरी के जब एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं तो पहले उनको सैंपल कुछ सॉल्व किए हुए हैं। इस तरह का ऑब्जर्वेशन सैंपल टेम्पलेट अगर दिया जाए तो ऑब्जर्वर को के कारण, मतलब ऑब्जर्वर की इनमैच्योरिटी है या इनकॉम्पिटेंटनेस है, स्किल्ड नहीं है उतना, तो इन चीजों को ओवरकम किया जा सकता है और थ्रू द सैंपल टेम्पलेट हम जो भी चीजें ऑब्जर्व करनी है वो कर सकते हैं। Another one is a checklist. It's a very popular form of observation or instrument of observation. Checklist, वो criteria based form. We call it as a assessment rubric if we are using it for the assessment purpose. In that case, we are called it assessment rubric. But it is a criteria based checklist. There are some criteria. अगर किसी एक्शन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर किसी फिनोमेना को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर किसी क्या कहते हैं, हम एक सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी वस्तु को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पहले से डिसाइड है कि मैं क्या ऑब्जर्व करने वाला और उसकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मतलब क्राइटेरिया, देयर इज अ क्राइटेरिया। स्कूल को ऑब्जर्वेशन करना है तो पहले से डिसाइड स्कूल के लिए नेसेसरी क्या है, प्रिंसिपल कैबिन चाहिए, स्टाफ रूम चाहिए, वॉशरूम चाहिए, गर्ल्स वॉशरूम चाहिए, बॉयज वॉशरूम चाहिए। दोज आर द रिक्वायरमेंट, दीज आर द क्राइटेरिया फॉर द स्कूल। तो एक स्कूल के लिए प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया होता है। जब हम स्कूल को निरीक्षण करने जाते हैं तो बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया वी आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स। तो ये जो चीज है, अब चेकलिस्ट जो है वो हमें सारी चीजें, मतलब ऑब्जर्व करते वक्त कुछ चीजें छूट ना जाए या वो कॉम्प्रहेंसिव हो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो, इसके लिए चेकलिस्ट इज वेरी यूजफुल वे और इंस्ट्रूमेंट फॉर द ऑब्जर्वेशन। चेकलिस्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन प्लान, अभी ये चेकलिस्ट क्या है, 1 2 3 4 5 चीजें ऐसे है, दैट इज द टिक करना है बस, है नहीं है, ओके है, फाइन है या फिर डेड है, जो भी है उस तरह से। लेकिन डिटेल ऑब्जर्वेशन प्लान का मतलब क्या है कि आप कब जाओगे, कहाँ जाओगे, कितना रुकोगे, किस कौन कौन सी चीजें देखेंगे, उनको नोट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें उस ऑब्जर्वेशन के प्लान में होंगी। अगर जब हम हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करते हैं, दैट टाइम जनरली वी आर यूजिंग डिटेल ऑब्जर्वेशन प्लान। जब हम म्यूजियम को विजिट करते हैं, दैट टाइम वी आर यूजिंग ऑब्जर्वेशन प्लान इंस्टेड ऑफ चेकलिस्ट, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट थिंग्स आर देयर। तो उस केस में हम चेकलिस्ट तो नहीं बना सकते, बट हम डिटेल ऑब्जर्वेशन प्लान वी कैन मेड इट। ओके, आगे है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। तो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जैसे चेकलिस्ट है वैसा ही ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। चेकलिस्ट में चीजें है कि नहीं इतना ही देखा जाता है। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में उनकी स्थिति क्या है, गुड है, फाइन है, जो भी उस चीजों को यहाँ हम नोटिंग कर सकते हैं। सोशियोमेट्री, तो हम लोगों से पूछ सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं किसी चीज के बारे में जानकारी, सोशल और लोगों को वो क्या दिखता है, कैसा है, वो हम उनसे पूछ सकते हैं। Observation diary, we can carry the observation diary, whatever things I saw, मैं उसका नोट डाउन करूँ अपनी डायरी में। हर जो चीज मैंने देखी उसकी नोटिंग करनी है, irrespective of criteria, irrespective of plan, irrespective of sample template, कुछ भी नहीं, जो जो मैं देख रहा हूँ वहां जाए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल वे। तो हमें रिसर्च में बहुत टाइम क्या होता है, वी शुड बायस फ्री, हमें बायस नहीं चाहिए, पहले से कुछ डिसाइड नहीं करना है, पहले से अपने अप्रोचेस बना के नहीं जाने हैं, वी हैव टू मतलब कंप्लीटली जैसे हमें ब्लैंक जाकर देखना है चीजें, पहले से अपने मन में कुछ बना के नहीं। उस केस में ऑब्जर्वेशन डायरी, एंड आई थिंक इन अ क्वालिटेटिव रिसर्चर्स ऑब्जर्वेशन डायरी इज अ वेरी यूजफुल वे, बहुत अच्छे से उसका उपयोग हो सकता है।
क्योंकि विदाउट बायस फ्री ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्वेशन डायरी इज वेरी यूजफुल थिंग। जो भी आपको दिख रहा है वो नोटिंग करो, अपने मन, अपने बायसेस, अपने विचार, अपने पूर्वाग्रह, अपनी जानकारी, अपना ज्ञान, सब उसमें कुछ भी मत ऐड होने दो, जो जो आ रहा है वो लिखते जाओ। तो दैट इज द वे। तो जो भी मिल रहा है वो तटस्थ रूप से डायरी में नोट करो। दूसरा है मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, या फिर किसी का साउंड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, साउंड एंड वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो माइक्रोस्कोप्स टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है उनका हम उपयोग ऑब्जर्वेशन के लिए कर सकते हैं, उनके वीडियोस बनाए जा सकते हैं। आज तो लैबोरेटरी में होने वाली हर चीज का वीडियो बन सकता है। अभी हमने कृष्ण विवर का जो है ब्लैक होल के बारे में जो ऑब्जर्वेशन है, वो सारे ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करके फिर वो कैसा है उसके कंक्लूजन तक आ रहे हैं। तो दैट इज द मैकेनिकल डिवाइसेस जो हम उसको यूज कर रहे हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन। वी कैन यूज एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्जर्वेशन द नैरेटिव लॉग। तो नैरेटिव लॉग भी आपको कहाँ क्या दिखने को मिल सकता है। लॉग लिखना मतलब मैंने विजिट किया, ये हुआ। जैसे नैरेटिव लॉग जो लिखते हैं मतलब डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ होता है, तो वन्य जीव प्राणी अभयारण्य इनमें जो होते हैं ना, वो जब विजिट करते हैं जंगल में ऑफिसर्स वगैरह, दे आर राइटिंग द नैरेटिव लॉग्स। तो उसका भी उपयोग हम भी कर सकते हैं फॉर, अगर हम ऑब्जर्वेशन में यूजफुल है तो। हाँ, रिलायबिलिटी इश्यू इन ऑब्जर्वेशन एंड रेमेडीज। तो ऑब्जर्वेशन में कुछ रिलायबिलिटी के इश्यूज है और उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, दोनों चीजें हम देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ सेंसेस, मतलब हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है, संवेदनाओं की जो हमारे, जितना कुत्ते को सूंघना पॉसिबल है उतना हमें नहीं है। किसी प्राणी को सुनना ज्यादा बेहतर है, किसी का देखना ज्यादा बेहतर है। तो ऑब्जर्वेशंस के लिए अपने सेंसेस की लिमिटेशन है। जितना हमें दिखता है दुनिया उतनी नहीं है, जितना हमें सुनाई देता है उतना नहीं है, ये जो हम कहते हैं। तो दैट इज द वन ऑफ द लिमिटेशन। आर्टिफिशियल बिहेवियर, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट टाइम वो सच्चे में वैसे है क्या मालूम नहीं। मतलब मेहमान आने के बाद घर वालों का बिहेवियर, मेहमान जाने के बाद घर वालों का बिहेवियर, इवन प्राणियों में भी जब उसको कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, दैट टाइम दे आर बिहेविंग आर्टिफिशियल। अगर उनको कोई नहीं देख रहा है देन दे आर बिहेविंग रियल, जो भी उनका बिहेवियर है। तो इस तरह के आर्टिफिशियल बिहेवियर किया जाने का और उसी को ऑब्जर्व करके कंक्लूजन पर आने का इश्यू हो सकता है। लैक ऑफ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इन इंटरप्रिटेशन, जब हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को तो चीजें जो है वो एब्सोल्यूट घटती है, मतलब एक एक चीजें घटती है और हमें उनको समझना कॉम्प्रहेंसिवली होता है। मतलब पहली घटना से लेकर अंत तक की घटना को हमें एक स्पैन में रखकर उसको समझना होता है। बट अगर जो लैक ऑफ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, उन चीजों का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रिसर्चर के पास या ऑब्जर्वर के पास अगर होगा तो उसका इफेक्ट जो है उसके इंटरप्रिटेशन पर पड़ सकता है। इनएडुकेसी ऑफ फेनोमेना, जो फेनोमेना है, जो कुछ घट रहा है, हम गए किले का बुरुज देखने या किले की जो 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 माची है उसको देखने, लेकिन वहां पर वो आधा टूटा फूटा पड़ा है, इनएडुकेसी ऑफ फेनोमेना, तो वो पर्याप्त नहीं है। हमें बारिश को ऑब्जर्व करने जाना है लेकिन वो बहुत थोड़ा सा ही हो गया, 8 दिन आई ही नहीं। तो in that case here we can say inadequacy of the phenomena, जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं ऑब्जर्वेशन के लिए अवेलेबल। तो ये भी इश्यूज में है। पर्सनल बायसेस ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो है वो अपने पर्सनल बायसेस को बाजू में रख के चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है और पर्सनल बायस के बेस पर वो उसका जो नोटिंग है, जो ऑब्जर्वेशन सीट में या डायरी में जो नोटिंग होता है जो भी घट रहा है उसका, इट मे बी अफेक्ट बाय द पर्सनल बायस ऑफ द ऑब्जर्वर. This is one of the issue. How to resolve this issue? Observation, we can use observation plan to resolve all these factors to avoid the personal biases and lack of in-depth understanding को avoid करने के लिए हम observation plan use कर सकते हैं, observation schedule use कर सकते हैं। इन्हीं दो चीजों को avoid करने, use of mechanical devices to overcome the limitation of senses, मतलब मुझे 10 मीटर तक का अपनी आंखों से दिख सकता है लेकिन माइक्रोस्कोप या फिर दूरबीन लगाकर मैं वहां आगे का भी देख सकता हूं। तो ये उसको ओवरकम करने के लिए यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस है। मैप है जिसका उपयोग करके हम
क्या कह सकते हैं हम, इनएडुकेसी ऑफ फेनोमेना को कवर कर सकते हैं। उसके बाद में यूज ऑफ सोशियोमेट्रिक स्केल, तो आर्टिफिशियल बिहेवियर जो है लोग देख रहे हैं इसलिए वैसे वो करते हैं, तो इस तरह के आर्टिफिशियल बिहेवियर को डील करने के लिए और उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोशियोमेट्री यूज कर सकते हैं, लोगों को बाजू रहने वालों को भी पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो उसके बाद में फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अगर हमने हाइपोथेसिस पहले से फॉर्म किया है तो हमारे पर्सनल बायसेस और जो लैक ऑफ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग का इश्यू रिजॉल्व हो जाए। कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, खुद अकेले ऑब्जर्वेशन करने की बजाय हम 2-3 लोग ऑब्जर्व करें और तीनों के ऑब्जर्वेशन में जो वेरिएशन है उसको निकाल के हम ऑब्जर्वेशन को ज्यादा सटीक बना सकते हैं। उसके बाद में ट्रेन्ड ऑब्जर्वर को सही से ट्रेनिंग होना जरूरी है, क्योंकि इट इज अगर जिसके सेंसेस को बढ़िया ट्रेनिंग है, सेंसरी ऑर्गन्स को, तो वो माइक्रो से माइक्रो चीजें देख सकते हैं, और जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं है ऑब्जर्व करने की, दे कैन मिस द सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। दिस इज द ऑब्जर्वेशन की बात हो गई। अभी हम देखते हैं इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू इज सेकंड, मतलब जैसे अगर हम ह्यूमन ग्रोथ की बात करें तो रिसर्च में भी प्राइमरी वे और प्राइमरी मेथड क्या है, तो ऑब्जर्वेशन है। सेकेंडरी मेथड इंक्वायरी है, जैसे इंटरव्यू हम कह रहे हैं, लेकिन इट इज अ सेकंड स्टेप ऑफ टू गेन द डेटा, टू गेन द इंफॉर्मेशन। इंक्वायरी फर्स्ट, हमें जब किसी चीज की जानकारी चाहिए तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व थिंग्स। इफ द ऑब्जर्वेशन इज इनसफिशिएंट इन दैट केस, अगर चीजें ऑब्जर्वेबल नहीं है और उनके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूछूंगा किसी से जिसको वो मालूम है, जिसने उसके बारे में देखा है। तुम्हारी भावनाएं क्या है? इमोशंस आर नॉट ऑब्जर्वेबल, इन दैट केस वी आर गोइंग टू इंटरव्यू इट। तो जो चीजें ऑब्जर्वेबल नहीं है, खास करके ह्यूमन बिहेवियर्स, ह्यूमन से रिलेटेड जो चीजें हैं, उनकी भावनाएं, विचार, मूल्य, एटीट्यूड्स, इथिक्स, बिलीफ्स, ये जो चीजें हैं वो अनऑब्जर्वेबल है, तो उनको हम पूछ सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं, उनको उसके बारे में जान सकते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स है, कॉजल रिलेशनशिप जिससे पता चलते, वो चीजें दैट आर द नॉट ऑब्जर्वेबल, मतलब वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो सकते, बट वी कैन डिस्कस इट एंड देन कंक्लूड, कम टू द कंक्लूजन। Interviewing involved asking questions and getting answers from participants in a study. तो इसमें क्या है, तो इंटरव्यू इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चन। इंटरव्यू में होता क्या है, प्रश्न पूछना, गेटिंग आंसर फ्रॉम पार्टिसिपेंट इन द स्टडी, जो भी स्टडी में लोग पार्टिसिपेटेड है उनको प्रश्न पूछना और उससे जो जानकारी चाहिए वो प्राप्त करना। G.W. Allport कहते हैं कि इफ वी वांट टू नो हाउ पीपल फील, what they experience and what they remember, what their emotions and motivation and like and the reason for acting as they do, why do not ask them? अगर ये सारी चीजें हैं वो देख के कुछ कुछ पता चल रही है, लेकिन we can ask them, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है, तुम्हारी फीलिंग क्या है, ये चीजें हम बहुत सहजता से उन्हें पूछकर सटीक और खातरी लायक जलापुरमन तो विश्व मतलब अश्योरिटी के अश्योर इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। Interviewing has a variety of forms including individual face-to-face interviews and face-to-face group interviews. एका व्यक्तीचा face-to-face होऊ शकतो किंवा एक से ज्यादा लोगों का ग्रुप में भी हम face-to-face इंटरव्यू कर सकते हैं। Characteristics of interview: it is a goal-oriented task. इंटरव्यू असच मुझे 2 दोस्त मिले हैं बहुत दिनों के बाद और बातें कर रहे हैं, दैट इज नॉट इंटरव्यू, क्योंकि वहां प्री डिटरमाइंड या प्री डिसाइडेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं। तो इंटरव्यू जो है एक गोल ड्रिवन है, उसका जो उद्देश्य है, जो गोल है, लक्ष्य है, क्या जानना चाहते हैं, वो पहले से क्लियर है। इंटरव्यूअर इज वेल अवेयर अबाउट द गोल ऑफ इंटरव्यू एंड उस गोल ऑफ इंटरव्यू के द्वारा ही इंटरव्यू ड्रिवन हो रहा है, मतलब इंटरव्यू उसी के दिशा में काम करता है। तो ये कोई इस तरह का जॉब नहीं, कैजुअल नहीं, इट्स अ वेरी माइंडफुल थिंग, गोल ओरिएंटेड थिंग, कॉन्शियस एक्ट इंटरव्यू। 2 or more person always, without another person the interview can't happen.
तो इंटरव्यू होने के लिए एक कम से कम 2 लोग चाहिए, एक पूछने वाला और एक बताने वाला। अकेला ही है तो इंटरव्यू की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो दिस इज अनदर बेसिक और वेरी very important characteristic. 2 or more persons are involved in a interview process. One is the interviewer and another one is जो इंटरव्यू दे रहा है, जो इंटरव्यू लेने वाला, साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला, ये दोनों की जरूरत है। फेस टू फेस रिलेशन, इंटरव्यू जो है वो सिंक्रोनस मोड में होता है। ऑलवेज इट इज अ सिंक्रोनस एक्ट। मतलब मैंने सिंक्रोनस शब्द क्यों यूज किया? इट इज अ वेरी लेटेस्ट वर्ड। सिंक्रोनस मीन्स फेस टू फेस नहीं है, जैसे अभी आप लोग वहां बैठे हो और मैं यहाँ हूँ। वी आर नॉट अ फेस टू फेस, बट वी आर इन अ सिंक्रोनस मोड। हम कैसे है? फेस टू फेस नहीं, मेरे सामने आप लोग नहीं बैठे हो और मैं आपके सामने नहीं बैठा हूँ, फिर भी ये कैसे चल रहा है? इट इज अ लाइव एंड one to one. It can happen a one to one interview. It can happen a one to one interaction. So face to face relation in a synchronous mode. मतलब मैंने अपने सवाल रिकॉर्ड करके आपको भेज दिया और आपने अपने जवाब रिकॉर्ड करके भेज, that in that case this is not the interview. तो वो इंटरव्यू नहीं होगा। अगर मैं रियल टाइम में, भले ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं दूर बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या फिर टेलीफोन के द्वारा अगर हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है, रियल टाइम कन्वर्सेशन, इट इज अ वेरी इसेंशियल फैक्टर टू द इंटरव्यू। तो अभी मैंने ऐसा नहीं होगा कि मैंने लिस्ट भेज दी सवालों की, आप सवाल के जवाब भेज दो। इन दैट केस इट विल बी कन्वर्टेड इन अ क्वेश्चन। या तो इंटरव्यू का जो नेचर है या कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज अ रियल टाइम टास्क, real time activity between 2 persons. It is an interaction between 2 persons. Question answer, इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो इंटरव्यू लेने वाला जो है वो क्वेश्चन पूछता है, जो देने वाला है उसके आंसर देता है। मे बी दैट क्वेश्चन आंसर्स आर स्ट्रक्चर्ड, प्री-प्लान्ड or may not be. Then another one feature is interview is structured. Sometimes it is a structured, fully structured or a semi-structured, but it is a formal process. Interviews is a planned process, formal process. कम ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बट इट इज अ स्ट्रक्चर। ऐसे ही मिल गए कहीं तो और इंटरव्यू शुरू हो गए, ऐसे नहीं। कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कितने बजे लगने वाला है, ये सब कम से ये बातें तय होती है। That in that case it is a always interview is a structured, but sometimes it is a more structured and sometimes it is a partially structured or some autonomy or openness is there. Controlled, it is a controlled act. मतलब यहाँ कंट्रोल होता है, दोनों में कुछ कंट्रोलिंग है एक दूसरे के ऊपर, 2 लोग है इसीलिए वो कंट्रोल्ड चीजें है। एंड थ्रू द इंटरव्यू इन अ रिसर्च देयर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इंटरव्यू का मकसद डेटा कलेक्ट करना होता है और इंटरव्यू के बाद कुछ ना कुछ डेटा जनरेट होता ही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उसको नहीं कह सकते कि इट इज इंटरव्यू। दैट इज जस्ट अ गॉसिप, वो गॉसिप चल रहा है उनके बीच में। देयर इज जस्ट अ कन्वर्सेशन, दैट इज नॉट अ इंटरव्यू बिकॉज इट हैजंट जनरेट द डेटा। उसने कोई भी डेटा या कुछ भी चीजें जनरेट नहीं की है। तो और एक चीज है, इंटरव्यू ऑलवेज अ सोशल एक्ट, इट्स अ सोशल एक्ट। ये इंटरव्यू जो है ये एक सामाजिक क्रिया है। क्रिया कहने से एक सामाजिक अंतर क्रिया है। नाउ टाइप ऑफ इंटरव्यू, there are 3 type of interviews or a form of interview. Actually we called it a form of interview. These are the 3 form of interview. जब हम टाइप्स की बात करते हैं, फॉर्मल इंटरव्यू, नॉन फॉर्मल इंटरव्यू, सेमी फॉर्मल इंटरव्यू, प्री प्लान्ड इंटरव्यू, इस तरह के टाइप्स आते हैं। बहुत सारे टाइप्स है, अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। बट जनरली देयर आर 3 form of interview. One is the structured form of interview, second is the semi structured form of interview, and unstructured form of interview. Structured का नेचर क्या है? what are the feature of structured interview? Interview ask each respondent, अगर multiple respondents होंगे तो each respondent the same series of questions. अगर मैं रिसर्चर हूं और मैं 10 रिस्पोंडेंट्स से मुझे इंटरव्यू करना है, तो अगर मैं 10 के 10 ही रिस्पोंडेंट्स को सेम सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेम सीक्वेंस के साथ, देन इट इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. The questions are created prior to the interview. If the questions are created prior to the interview, means
previously decided all questions and their sequences, then we can call it is the structured interview. There is a generally little room for the variation in a responses. इस तरह के स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कुछ जो सीक्वेंस में नहीं है, जो प्लानिंग में नहीं है, जो जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट में नहीं है, ऐसे चीजें होने के लिए बहुत कम अवकाश होता है. देयर इज अ लिटिल रूम. उसके लिए जगह उतनी ज्यादा इसमें नहीं होती, बहुत कम जगह उसमें होती है एक आध सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वहां उतना स्कोप उसके लिए नहीं. Question is standardized and the ordering and phrasing of the questions are kept consistent from a interview to interview, interviewer to interview. तो जो सवाल पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे स्टैंडर्डाइज पहले से तय है. क्यों पूछना है, कितना पूछना है, कितने वर्ड्स होंगे, किस तरह से पूछना है, दैट इज ऑलरेडी तय किया है, उसको स्टैंडर्डाइज किया है, बार बार उसको चेक किया गया है. वहां कुछ बदल होने की कोई संभावना नहीं है. उसका ऑर्डर जो है, उसका प्राइसिंग जो है, वो भी पहले से प्री डिसाइडेड है. ऑफ द क्वेश्चंस आर केप्ट कंसिस्टेंट, सेम ही रहने वाला है फ्रॉम इंटरव्यू टू इंटरव्यू. हर एक इंटरव्यू में वो वैसा का वैसा ही रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. द इंटरव्यूअर प्ले अ न्यूट्रल रोल इन द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. द इंटरव्यूअर प्ले अ न्यूट्रल रोल. वो क्या, वो ना उसके सहमति हो ना उसके विरोध में है, वो झगड़ा नहीं करते बैठेगा, या वो जज नहीं बनेगा, वो जजमेंटल रोल नहीं है उसका. ही इज अ वेरी न्यूट्रल पर्सन इन अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. The another form of interview is a semi-structured interview. The interviewer and respondent engage in a formal interview. Both are engaged in a formal interview. This is the formal interview. ऐसा नहीं है कि semi-structured है मतलब इसमें कुछ भी formalities नहीं. Both are engaged in a formal interview. The interviewer develop and sends an interview guide. वो interviewer जो है वो खुद इंटरव्यू गाइड जो है डेवलप करता है. वो स्ट्रक्चर क्वेश्चंस नहीं तैयार कर रहा है, इंटरव्यू गाइड को डेवलप कर रहा है. दिस इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स. समटाइम इट मे बी अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और टॉपिक्स. वो टॉपिक ही खाली लिखे हुए हो सकते हैं. किसी पार्टिसिपेंट को पहले वो पूछ लिया, किसी को दूसरा पूछ लिया, ऐसा उसमें चल सकता है. बिकॉज इट इज अ सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड टॉपिक्स दैट नीड टू बी कवर्ड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, यूजुअली इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. ओके, तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड में है. द इंटरव्यूअर फॉलो द गाइड बट इज एबल टू फॉलो टॉपिक्स trajectories in the conversation that may stray from the guide when he or she feels this is the appropriate. वो गाइड फॉलो कर रहा है, वो कुछ मतलब क्वेश्चनियर फॉलो नहीं कर रहा है. दैट्स व्हाई अगर उसको कहीं लग रहा है कि यहाँ कुछ बदल करना है या कुछ ऐड करना है एक सवाल, तो he or she can do it. Then third form of interview is an unstructured interview. The interviewer and respondent engage in a formal interview in that they have a scheduled time to sit and speak with each other and both parties recognize this to be an interview. Unstructured है इसका मतलब ये नहीं है कि बस बैठे हैं और पार्क में बैठे बैठे इंटरव्यू शुरू हो गया. Both should be aware this is the interview. वो इंटरव्यू है, ये पहले से डिसाइड, दोनों में ये डिसाइड है कि मैं आपको कुछ पूछने वाला, आपको जवाब देने वाले हैं. मतलब अनस्ट्रक्चर्ड है मतलब उसमें कुछ भी है ऐसा नाही आहे. इट इज अ इंटरव्यू स्टिल. जरी ते अनस्ट्रक्चर्ड असलं तरी ते इंटरव्यू आहे, त्यामुळे त्याच्यात ह्याही गोष्टी अपेक्षित आहे. द इंटरव्यूअर हैज अ क्लियर प्लान इन माइंड. अभी आप डिफरेंस देख सकते हो. पहले में तो उसके हाथ में स्क्रिप्ट था, दूसरे में गाइड बुक है, और तीसरे में क्या है, he interviewer has a clear plan in mind. उसके दिमाग में प्लान regarding the focus and goal of the interview. There is not a structured interview guide. यहाँ पर कोई भी structured interview guide वो उपयोग में नहीं ला रहा है, वो उपयोग नहीं कर रहा है. Question tend to be open-ended. जो सवाल है वो open-ended है. Ethnographic in-depth interviews are unstructured interviews. These are the example of unstructured interview. Now we are going to discuss the method of questionnaire. Questionnaire is another most commonly used method. Questionnaire, interview, observation, ये तीनों साधन जो है या फिर जो भी चारों साधन हम आज देख रहे हैं वो चारों क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए भी उपयोग में है, डेटा कलेक्शन के लिए, और दे कैन यूज फॉर द क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन also.
तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। यस प्लीज प्लीज। सर ये जो वाइवा होता है दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और नॉट? It is a semi-structured interview. Okay, semi-structured. Yeah. Thank you. Because there is a agenda. वाइवा के लिए एजेंडा होता है, प्रायर एजेंडा होता है, स्कोप्स आर डिसाइडेड. Okay. Yes. Yes. That's why it is a semi-structured. Okay. Another method of the data collection is questionnaire method. And I think this is the most used, मतलब बहुत ज्यादा यूज होती है दुनिया भर में जो चीज है रिसर्च में, खास करके ह्यूमैनिटीज में, वो क्वेश्चनएयर का उपयोग होता है. A questionnaire is a research instrument. It is a research instrument consisting of a series of questions and other prompts for the purpose of gathering information from respondent. Respondent से जो जरूरी इंफॉर्मेशन है जो हमारे रिसर्च के लिए एसेंशियल है, वो प्राप्त करने के लिए पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है. Although they are often designed for statistical analysis of the responses, this is not always the case. बहुत ये मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चनएयर के जो रिस्पॉन्सेस है उसको हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है, हर केस में वो जरूरी नहीं. The questionnaire was invented by Sir Francis Galton. 1822 1911 is a period of Francis Galton. Characteristics of questionnaire. Sequence of questions. There is a sequence in questions. Questionnaire में जो भी सवाल होंगे उनमें एक sequence होता है. That sequence is a logical sequence. वो ऐसे ही नहीं डाले हुए, वहां कुछ सोच समझकर उनके sequences लगाए हुए. Uniformity. जो क्वेश्चन पूछे जा रहे उनमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए. अगर उसमें कुछ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी तो जो रिस्पोंडेंट है वो जल्दी उससे इरिटेट हो जाएगा, या फिर उसको हमें एग्जैक्टली मुझे क्या रिप्लाई करना है ये नहीं समझ में आएगा. तो देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन अ क्वेश्चन. वी कैन से दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन, लाइक सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस, यूनिफॉर्मिटी, एक्सप्लोरेटरी, इजी टू अंडरस्टैंड. दीज आर द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनएयर. आल्सो जो क्वेश्चनएयर है उसके जो सवाल है वो बहुत आसानी से समझ में आने चाहिए. एक्सप्लोरेटरी मीन्स जो भी आपको चाहिए इंफॉर्मेशन उसके बारे में वो क्लियर कट पूछ सके, मतलब जो रिस्पोंडेंट है उसको क्लियर कट क्या चाहिए वो उससे पता चला. और दो फीचर्स है, जैसे इट टेक्स लेस टाइम टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट. क्वेश्चनएयर जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होने का एक रीजन ये है कि बहुत कम टाइम में हम बहुत बड़ी संख्या में रिस्पोंडेंट से प्रश्नावली के माध्यम से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. कंपैरेटिवली इट इज अ इजी वे टू कलेक्ट द डेटा इन अ मास लेवल. तो द क्वेश्चनएयर इज अ इनएक्सपेंसिव मेथड. दैट्स व्हाई इट इज अ इनएक्सपेंसिव मेथड. इतनी महंगी ये चीज नहीं है जितना कि हम कैसे शेड्यूल है या फिर क्या कहते हैं उसको सोशियोमेट्री है, उसको फील्ड पर जाकर करवाना है तो वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो जाता है. तो ये हम पोस्ट से भेजकर मेल करके भी आज के टाइम में तो हम गूगल फॉर्म के द्वारा क्वेश्चनएयर का जो है रिस्पॉन्सेस कलेक्ट कर सकते हैं. Type of questionnaires. Questionnaires, basically there are two type of questionnaires. One is a structured questionnaire and another one is a unstructured questionnaire. Unstructured questionnaire बहुत rarely research में use होते हैं क्योंकि हमारी जो questionnaire है वो objective based होती है, उसके analysis objectives के micro analysis के base पर होती है. That's why most of time in a research structured questionnaire is useful. But there are some questionnaires which are the useful, unstructured questionnaires which are the useful, but very मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा unstructured interview या unstructured questionnaires को नहीं देखा है, ऐसे यूज में नहीं देखा है. बट कुछ खास करके सोशियोलॉजिस्ट है जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनएयर की वकालत करते हैं और वो यूज भी उन्होंने किया है. तो
अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर भी हो सकते हैं, मतलब क्वेश्चन के सीक्वेंस नहीं है, बट जैसे रिस्पोंडेंट चाहे वैसे दे सकते हैं, मुद्दे खाली टॉपिक दिए हुए और उनको उसके बारे में लिखने को कहा गया हो, इस तरह की जानकारी मांगी गई हो, तो इट कैन बी। स्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चनियर होते हैं उसके कुछ अलग अलग टाइप्स है, जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसमें कि चार बस आप मतलब आपके इनकम कितना है, आपका ये कितना है, आपके जैसे डेमोग्राफिक डेटा है, दैट इज द क्लोज एंडेड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसमें जो है वो एक रिस्पांस उसको मिलना है, तो उस तरह का। ओपन एंडेड, जिसमें कि जो पार्टिसिपेंट है वो अपने, हर एक पार्टिसिपेंट अपने हिसाब से उसका जवाब दे सकता है। इट मे बी सब्जेक्टिव आंसर वहां पॉसिबल है। और दूसरा है मिक्स्ड, तो कुछ सवाल जो है ओपन एंडेड है, कुछ सवाल जो है वो क्लोज एंडेड है, तो उसको हम मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चनियर कह सकते हैं। स्केलिंग क्वेश्चंस, जो स्टैंडर्ड टेस्ट है या फिर कुछ स्केल है, गूगल फॉर्म अगर आप जानते हो तो गूगल फॉर्म में भी कुछ स्केलिंग क्वेश्चन के पैटर्न है, जैसे कि लाइकर्ट स्केल हम कर सकते हैं, रैंक ऑर्डर दे सकते हैं, स्टेपल स्केल्स, सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये जो है स्केलिंग क्वेश्चंस है। जैसे हम चूज 1 to 5, मतलब एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट के लिए लाइकर्ट का यूज करते हैं, रैंक के लिए फ्रॉम 1 to 10 और 10 to 15, इस तरह से रैंक के लिए, या फिर स्टेपल स्केल, जिसमें कि एक दिशा में हम उसको पूछ सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट को जानने के लिए, सेगमेंटल स्केल जिसमें दोनों दिशा में हम रिस्पॉन्सेस ले सकते हैं। तो दीज आर द स्केल। उसको जैसे हम कहते हैं ना, मतलब एडवर्टाइज प्रोडक्ट को रेटिंग करना वगैरह, तो ये सेगमेंटिक डिफरेंशियल के स्केल में आता है। सेटिस्फैक्शन स्केल आते हैं बहुत बार, मूवी आपको कैसी लगी, तो उसके लिए स्टेपल स्केल का उपयोग होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से तो हम सभी अवेयर है, क्वेश्चन है और 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस दिए हुए, तो इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप उसमें से उपयुक्त पर्याय का सिलेक्शन कर सकते हैं। दैट इज द स्केलिंग, इट्स कॉल्ड अ स्केलिंग क्वेश्चंस। ये सारे जो है स्केलिंग क्वेश्चंस में आते हैं। पिक्टोरियल क्वेश्चंस, कुछ चित्र दिए हुए हैं और उसके आधार पर जवाब मांगे गए, कुछ एक्शंस है और आपको उसको इंटरप्रिटेट करके लिखना है। इस तरह की क्वेश्चनियर्स, पिक्टोरियल क्वेश्चनर्स जो है वो सोशल साइंसेस में यूज होती है बहुत बार। Basic rule for questionnaire item construction: use statements which are interpreted in the same way by members of different subpopulation of the population of interest. तो जो भी हमारा जो जिन लोगों को हमने भेजा है उसमें हमारे अगर अलग अलग पॉपुलेशन के ग्रुप है, क्लस्टर सैम्पलिंग है या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड से अगर हम कर रहे हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के सैंपल से, तो सभी को एक ही तरह का इंटरप्रिटेशन उस क्वेश्चंस का निकलना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि मर्दों को भी उसका वही अन्वय अर्थ लगे, औरतों को भी वही लगे, या फिर बच्चों को भी, जो भी रिस्पोंडेंट है अलग अलग ग्रुप से, सबको उसका इंटरप्रिटेशन शुड बी सेम। तो इस तरह के प्रश्नों की रचना होनी चाहिए। यूज स्टेटमेंट्स वेयर पर्सन्स दैट हैव डिफरेंट ओपिनियंस और ट्रीट्स विल गिव डिफरेंट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं जहां पर हमें डिफरेंट ओपिनियंस और डिफरेंट आंसर चाहिए, तो उनको उसके लिए स्कोप हो। थिंक टू हैव एन ओपन आंसर कैटेगरी आफ्टर अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल आंसर्स। तो क्वेश्चंस में जैसे हम बहुत बार देखते हैं, बहुपर्यायी प्रश्नों में 2-3 पॉसिबल आंसर्स हम सजेस्ट करते हैं और उसके बाद में एनी अदर का जैसे हम देते हैं, तो कई और असलं तर ते पण लिहा, एनी अदर आपका रिस्पॉन्स है तो वो भी लिखिए। तो वी हैव टू गिव सच अ अपॉर्चुनिटी। Category after a list of possible answers. Use only one aspect of the construct you are interested in a pair item. तो इस तरह से हम एक एस्पेक्ट पर, एक सवाल में एक ही एस्पेक्ट पर पूछिए, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। यूज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड अवॉइड नेगेटिव और डबल नेगेटिव्स। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स क्वेश्चनियर में नहीं होने चाहिए। डू नॉट मेक अजम्पशंस अबाउट द रिस्पोंडेंट्स। तो हमें उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना है रिस्पोंडेंट्स को, कि ऐसे कर देंगे उसको ऐसा ही लगेगा, इसका ऐसा मान के नहीं चलना है, तो वो नहीं होना चाहिए। यूज क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल वर्डिंग। जो भी वर्डिंग क्वेश्चनियर की होगी वो क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल, समझ में ऐसी होनी चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल एजुकेशनल लेवल्स
अलग अलग एजुकेशनल लेवल के रिस्पोंडेंट है, तो सभी को वो समझ में ऐसा होना चाहिए. यूज करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन. अवॉइड आइटम दैट कनेक्ट मोर देन वन क्वेश्चन पर आइटम. फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक स्ट्रॉबेरीज एंड पोटैटोज. अभी दोनों एक में डालने की कोई जरूरत नहीं है. इस तरह के करेंगे तो उनको मतलब यस और नो कैसे कहे, दोनों पूछा है, मुझे स्ट्रॉबेरी यस है, पोटैटो नहीं है, तो कैसे रिस्पॉन्स करेगा. तो इस तरह के नहीं पूछने हैं. क्वेश्चन शुड नॉट बी बायस्ड और इवन लीडिंग द पार्टिसिपेंट टॉवर द आंसर. इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जिसमें आपका बायस दिखता हो और उनको क्या जवाब देना चाहिए उसके बारे में संकेत मिल रहा है. तो इस तरह से सवाल भी नहीं होने चाहिए. दिस इज द अनदर मेथड, फोकस ग्रुप डिस्कशन. मे बी आपके लिए नया होगा या फिर अभी लेटेस्ट सिलेबस में ये पीजी को है ही ऑलरेडी, तो आप उसके बारे में अवेयर भी होंगे. तो इससे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह के डेटा कलेक्ट करने के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन जो है वो यूजफुल है. बहुत बार एम्पिरिकल एविडेंसेस के लिए वो इसका उपयोग होता है, और क्या कहते हैं हम, बहुत ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए भी इसका उपयोग होता है. क्योंकि फोकस ग्रुप डिस्कशन में हमारा फोकस जो है वो हमारा सब्जेक्ट, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ग्रुप को हम मॉडरेट करें, मतलब रिसर्चर जो है मॉडरेट या फैसिलिटेटर के रूल में होता है, तो वो उन्हीं पॉइंट्स को फोकस में रखते हुए डिस्कशन करवा सकता है. और जो रिस्पोंडेंट है वो ज्यादा खुल के रियल उसका जो रिस्पॉन्स है उसके लिए वो हमें दे सकता है. Focus group methods emerged in the 1940s with the work of Marathon and Fisk, who used focus group to conduct consumer satisfaction. A focus group discussion, FGD, is an in-depth field method that brings together a small homogeneous group. इसके लिए बहुत जरूरी बात है कि जो ग्रुप है आपने जिसके साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन करना है, they should be a homogeneous group and group should be a small, usually 6 to 12 persons उस ग्रुप में हो सकते हैं. to discuss topic on a study agenda. जो भी आपके स्टडी एजेंडा है उस टॉपिक को आप उनके साथ डिस्कस करेंगे, रिसर्च. The purpose of this discussion is to use the social dynamics of the group. जो ग्रुप में एक दूसरे को पूछना, एक दूसरे के सवालों के लिए मोटिवेट करना, इस तरह का जो सोशल डायनामिक वर्क करता है, उसका यूज आपको जो रिगरस इंफॉर्मेशन चाहिए, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको निकालने के लिए आप कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर, फैसिलिटेटर, टू स्टिमुलेट पार्टिसिपेंट टू रिवील अंडरलाइंग ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड रीजंस फॉर देयर बिहेवियर. तो इस तरह की हम कह सकते हैं जो विस्तृत जानकारी एक व्यक्ति के वर्तन के बारे में चाहिए, तो इस तरह के focus group discussion का उपयोग हो सकता है. In short, a well-facilitated group can be helpful in finding out the how and why of human behavior. तो इस तरह के सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए हमें इसका उपयोग होता है. Characteristic of FDG: identify the target market, people who possess a certain characteristic. तो उसको identify करने के लिए provide the short introduction and background on the issue to the discuss. Have a focus group members write their responses to the issue or the issues, facilitate group discussion, recommended size of the sample group in 6 to 10 people. Several focus groups should be used in order to get a more objective and micro view of the investigation. Focus group might be used, ये कहाँ use हो सकता है? Explore new research areas, to explore a topic that is difficult to observe, जिसका observation नहीं हो सकता, उसको explore करने के लिए. Explore a topic that does not lend itself to observational techniques. Explore sensitive topics. Collect a concentrated set of observation in a short time span. Script perspectives and experiences from people on a topic, particularly when they are people who might otherwise the marginalized. तो इस तरह इनसे भी जानकारी के लिए वो gather preliminary data, primary data प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग होता है. Add in the development of surveys and interviews guides. तो survey and interview guide के develop करने के लिए इसका उपयोग हो सकता है. Clarify research findings from another method.
हमें अगर किसी एक क्वेश्चनियर से हमें रिसर्च के कुछ फाइंडिंग्स मिले, तो वो फाइंडिंग्स अगर क्लियर नहीं हो रहे, इन दैट केस वी आर यूजिंग फोकस ग्रुप डिस्कशन विद द 6 to 10 peoples, and we make the clarification about the research findings by the another method. Explore the range of opinions, views on the topic of interest, collect a wide variety of local terms and expansion used to describe the diseases. तो इसके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी explore meanings of survey finding that cannot be explained statistically. जो statistically explain नहीं हो सकता है, उनको meaning, उसको अर्थ प्राप्त करके देने के लिए भी focus group discussion use होता है. These all are the 4 very commonly or very useful methods of data collection, and all 4 are useful to gather the qualitative and quantitative data. Here is end for my end. It is my my presentation. Thank you very much. Hello. If you have any questions, participants have any questions, they can ask. Feel free to ask any question, doubt. हेलो. Yes. सर थोड़ा चेक लिस्ट के बारे में बताएंगे सर? Sorry. चेक लिस्ट के बारे में थोड़ा सर. हाँ, चेक लिस्ट तो ऑब्जर्वेशन का टूल है, जो ऑब्जर्वेशन जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं उसमें चेक लिस्ट आता है. इट इज अ क्राइटेरिया बेस्ड टूल, मींस देयर इज अ क्राइटेरिया. चेक लिस्ट में क्राइटेरिया दिया होता है, क्या क्या चेक करना है आपको, वो चीजें दी हुई है, और ऑब्जर्वर क्या करता है, वो चीज दिखती है तो वो ऑब्जर्वर वहां पर टिक करता है. तो मतलब चेक लिस्ट जो है, इट इज अ ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट, and it is a very primary type of observation instrument which is helpful for the observe all micro things. सारी छोटी छोटी चीजें कहीं छूट ना जाए, इसके लिए चेक लिस्ट जो है वो यूजफुल है. थैंक यू सर. यस, थैंक यू सर. हाँ, बोला, कौन बोलते हैं? Do anybody have any type of question? Do anybody have any type of question they can ask? Yeah, we have a more 5 minutes. Yeah, so don't worry about the time. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I suppose the students doesn't have any questions. So I like to call upon Seema Pandey madam for the vote of the thanks for the today's session. Seema Pandey madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. To wind up the today's session, vote of thanks, I'm calling you, madam. Can you hear me, ma'am? Hello? Yeah, yes, madam. Yes, madam. We can hear you. Okay. Good afternoon, everyone. To one and all present here, discuss on the topic data analysis about quantity and quality data. Sir, your guidance about data collection based on primary and secondary data, observation technique, interviews method, questionnaires method, focusing on group discussion had made us earn a lot of knowledge and information, sir, about data analysis. Sir, one of the line you mentioned in our guidance, observation is not only one of the most pervasive activities of daily life, but it is also a primary tool and scientific inquiry. Was a great motivation for participants. Thanks a lot for your presence and valuable guidance, sir. Thank you very much, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank Hello. you, there is a one question from Lubna Mariam. I would like to answer it. Sure. She is asking, sir, I have doubt about the close and open-ended question. Open-ended question generally a descriptive type of questions, जिसमें कि वो अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने मत, अपना satisfaction, dissatisfaction, agreement, disagreement express कर सकते हैं in a descriptive manner. But in a close-ended question, if they are agree or disagree, they can just rate it in a Likert scale type of things. There is only 4 to 5 options. The question is close-ended. तो वहाँ
उसको कोई अदर देन एक्सप्रेशन के लिए स्कोप नहीं है। मतलब उस क्वेश्चन में अगर उसको जो दिए हुए लिस्टेड पॉसिबल आंसर्स छोड़कर अगर उसको रिस्पॉन्स करने की पॉसिबल अवसर नहीं है या वहां कोई व्यवस्था नहीं है, in that case we can count it a close-ended question. And this type of close-ended questions are very useful to statistical analysis and conversion of numerical things, or we can use this, convert this in a marks or a scale achievement, total achievements, etc. And we can analyze it with the inferential statistic also. Whenever we using open-ended question, in that case, little bit difficult in the it will be difficult to analyze in a through the statistical tools. This is the difference in close-ended and open-ended questions. Open-ended question is open to the give unique and subjective responses, and close-ended question is not giving opportunity to give subjective responses other than possible answers. Am I clear, Lubna? Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thanks for your efforts. Yeah, she is giving a message in the chat box. Yeah. The session was too worthwhile, sir. It has covered all the topics related to your data science, data analysis, quality analysis, and quantitative analysis. I thank you all, sir. And thank you. It's my pleasure. I enjoyed, really, I also enjoyed the session. Thank you. Okay. And one more thing, all the participants have to join again by 2 p.m. for the next session. Okay. Bye-bye. Can I leave? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Ghatur Ganesh. Ghatur Ganesh, are you there? End up the meeting. All the participants can leave. You need to rejoin at 2 o'clock. All the participants can leave. Prashant, you can leave. Abhijit, you can leave.